ڈیڈ، یہ گل بیبی کی نواسی ہے اور مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگا اس کا ہمارے گھر آنا۔ نوین ناگواری سے عریشے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ انہوں نے ایک کڑوی نگاہ عریشے پر ڈالی اور اندر کی طرف بڑھ گئے۔ عریشہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ سمجھ نہیں پائی نوین کے بابا ایسے کیوں دیکھ رہے تھے۔ ابھی چہروں کو پڑھنے سے قاصر تھی۔ ننھی عریشہ بھی تو بس لہجوں کی پہچان کر رہی تھی۔ جو کچھ نوین اس کے ساتھ کر رہا تھا، ننھی عریشہ کا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ مسٹر شہباب اندر جاتے ہی مسز شہباب کو آواز کو پکارنے لگے۔ وہ جلدی سے ان کی آواز سن کر ان کے پاس آ رکی۔ جی کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ آپ بہت غصے میں لگ رہے ہیں مجھے۔ ملازم جوس کا گلاس لے کر آئی تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے پینے سے منع کر دیا۔ ملازم چپ چاپ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ خیریت ہی تو نہیں ہے، آپ کمرے میں چلیں، بات کرنی ہے آپ سے۔ مسٹر شہباب غصے سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ لائبہ اور نوین دونوں ہی وہیں کھڑے تھے۔ آپ دونوں اپنے کمرے میں جائیں، مسٹر شہباب نے کہا تو دونوں اوکے مما کہتے ہوئے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو شاہ صاحب؟ آپ بچوں کے سامنے ہی غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسٹر شہباب کمرے میں آتے ہی بولنا شروع ہوگی اور نوین کے اس رویے کا ذمہ دار مسٹر شہباب کے رویے کو ٹھہراتی تھی۔ ان کا ہر وقت غصے میں رہنا، بچوں کے سامنے غصہ دکھانا، نوین ان سے ہی تو سیکھ رہا تھا سب کچھ۔ ماں باپ اپنے رویوں پر نظر نہیں ڈالتے، پھر کہتے ہیں بچے بہت غصہ کرتے ہیں، بہت چڑا ہو گیا ہے۔ کوئی بات نہیں ماتا، یہ سب ماں باپ کے رویے کا ہی اثر ہوتا ہے۔ بچہ وہی بولتا ہے جو وہ سنتا ہے اور وہی کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے۔ وہ کون ہے یہ بچی؟ مسٹر شہباب ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولے۔ کون سی بچی؟ مسٹر شہباب کو سمجھ نہ آئی۔ وہ کس بچی کی بات کر رہے ہیں؟ گل بیبی کی نواسی۔ وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ مسٹر شہباب غصے سے چلائے۔ اوہ اچھا، عریشے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مسٹر شہباب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ عریشے کی بات کر رہے ہیں۔ جی وہ گل بیبی کی نواسی ہے، اب یہیں رہے گی ان کے ساتھ۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں میں؟ ان کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا تھا شاہ صاحب۔ وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال اس کی بچی کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ باپ نے دوسری شادی کر لی، مگر سٹیلی ماں اس بچی کو ماں کا پیار نہیں دے سکی، اس پر ظلم کرتی رہی۔ جیسے ہی باپ کو معلوم ہوا تو اس نے یہاں بھیج دیا اس بچی کو اپنی نانی کے پاس، تاکہ سٹیلی ماں کے ظلم و ستم سے بچا سکے اس کو۔ اب اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ چھوٹی سی بچی ہے وہ، کتنا کھا لے گی ہمارا؟ گل بیبی بھی اکیلی تھی، ان کو بھی سہارا مل جائے گا۔ وہ سب ٹھیک ہے، مگر اس بچی کو لائبہ اور نوین سے دور رکھیں۔ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہمارے بچے ملازموں کے ساتھ کھیلیں۔ آج جب میں گھر آیا تو وہ گارڈن میں نوین اور لائبہ کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ آئندہ مجھے ایسا کچھ نظر نہ آئے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ مسٹر شہباب وہی سوچ میں پڑ گئی، سمجھ نہیں آتی یہ باپ بیٹی کو ایسے بچی سے کیا دشمنی ہے۔ خیر میں گل بیبی سے کہہ دوں گی کہ وہ عریشہ کو منع کر دے نوین اور لائبہ کے ساتھ کھیلنے سے۔ گل بیبی شام کو تھکی ہاری اپنے کوارٹر کی طرف بڑھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ عریشہ گھاس پر پڑی سو رہی تھی۔ وہ تیزی سے عریشہ کی طرف بڑھی۔ عریشہ گل کیا ہوا میری بچی؟ وہ عریشہ کے گال تھپانے لگی۔ عریشہ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور انگڑائیاں لینے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان تھی۔ گل بیبی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ عریشہ تم کمرے سے باہر کیوں نکلی اور یہاں کیوں سو رہی تھی؟ ان کے سوال پر عریشہ کی مسکراہٹ سمیٹی۔ اور نوین نے کہا تھا کہ میں ان کی نوکر ہوں، ان کی مرضی کے بغیر اندر نہیں جا سکتی۔ وہ خود اندر چلے گئے مگر مجھے اندر جانے کو بولا ہی نہیں، اس لیے میں انتظار کرتے کرتے ادھر ہی سو گئی۔ عریشہ کے جواب پر گل بیبی بھی حیران رہ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر عریشہ کو سینے سے لگایا۔ ان کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ عریشہ نے ان سے الگ ہوتے ہوئے ان کے آنسو صاف کیے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے۔ مجھے بھوک لگی ہے بیبی۔ وہ معصومیت سے عریشہ کی معصومیت پر مسکرا دی، اپنے ساتھ لیے کوارٹر کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے دن گھر میں خوب چہل پہل تھی، پورے گھر کو سجایا جا رہا تھا۔ آج نوین شاہ کی سالگرہ کا دن تھا، گھر میں اس کی سالگرہ پارٹی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ گل بیبی ہی عریشہ کو ناشتہ کروانے کے بعد کمرے سے جا چکی تھی۔ عریشہ کھڑکی میں بیٹھی گارڈن کو سجتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یہ گارڈن بھی کسی شادی ہال سے کم نہیں تھا۔ ننھی عریشہ حسرت بھری نگاہوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ عریشہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے گارڈن میں بیٹھ گئی پھولوں کے پاس۔ اسے ڈر تھا کہ پھر سے نوین نہ آ جائے، پھر بھی ہمت کرتے ہوئے باہر آ بیٹھی۔ وہ گارڈن میں ہونے والی سجاوٹ کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ سامنے ایک بڑا سا اسٹیج تھا جس پر پھولوں سے سجاوٹ کی جا رہی تھی۔ اسٹیج کے سامنے کرسیاں اور میز لگائے جا رہے تھے۔ عریشہ نہیں چاہتی تھی کہ آج نوین کی سالگرہ ہے۔ وہ ننھی سی بچی یہ سمجھ کر خوش ہو رہی تھی کہ آج گھر میں شادی ہے۔ عریشہ آخر کار تھک ہار کر کمرے میں جا کر سو گئی۔
गुल बीबी दोपहर को कमरे में आई तो ऋषि को खाना खिलाने लगी, मगर ऋषि को सोता देखकर वो वापस पलट गई। बहुत काम थी आज घर में। शाम को ऋषि की आंख खुली तो खिड़की से छन छन के कमरे में दाखिल हो रोशनी देखकर जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ी। बाहर जाते ही ऋषि की हैरत की इंतहा नहीं रही। सारा गार्डन रोशनियों से जगमगा रहा था, हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियां फैली हुई थी। ऋषि हसरत भरी निगाहों से इधर उधर देखने लगी। अभी तक कोई मेहमान नहीं आया था। ऋषि अकेली ही यहाँ चलती जा रही थी। ऐसी खूबसूरत लाइट्स और सजावट इसने पहली बार देखी थी। वो अपना फ्रॉक संभालती हुई गोल गोल घूमती, कभी इधर जाती तो कभी उधर। सबसे बेगानी हो चुकी थी, वैसे पता ही नहीं चला। वो कभी स्टेज पर गई और स्टेज पर आकर जब थक गई तो सोफे पर लेट गई। सोफा बहुत पुरसुकून था, ठंडी हवा चल रही थी। ऋषि ने पुरसुकून होकर आंखें बंद कर ली। कब इसकी आंख लगी इसे पता ही नहीं चला। ऋषि को किसी ने बाजू से छोड़कर उठाया। ऋषि ने आंखें खोली तो सामने मिसेस शाह खड़ी थी और साथ में नवीन भी खड़ा था। तुम यहाँ क्यों सो रही हो ऋषि बेटा? जाओ अपने कमरे में जाकर सो। ये भी कोई सोने की जगह है? वो नागवारी से बोली। ऋषि के कपड़ों पर लगी मिट्टी सफेद सोफे पर अपने दाग छोड़ चुकी थी। नवीन ग्रे पैंट कोट पहने बहुत रफ्तार लग रहा था। पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले बहुत मगरूर अंदाज में ऋषि को देख रहा था। ऋषि इसकी नजरें खुद पर जमी महसूस कर चुकी थी। नवीन की आंखों में अमंडता गुस्सा इससे छुपा नहीं था। नवीन आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ नन्ही ऋषि के नाजुक से गाल पर मार दिया। ऋषि गाल पर हाथ रखे हैरानगी से इसकी तरफ देखने लगी। मिसेस शाह जल्दी से नवीन की तरफ बढ़ी। ये क्या बदतमीजी है नवीन, छोटे बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। मिसेस शाह ने नरम लहजे में नवीन को समझाया। गार्डन में दाखिल होते मिस्टर शाह नवीन की दादो लाइबा और घर के सभी मुलाजम नवीन को ऋषि को थप्पड़ रसीदा करते देख लिया था। नवीन के बाबा जल्दी से स्टेज की तरफ बढ़े। क्या हो रहा है ये सब? वो नागवारी से ऋषि को देखते हुए बोले। आपने देखा नवीन ने इस बच्ची को मारा? मिसेस शाह सदमे की कैफियत में बोली। जी देखा है मैंने। बहुत अच्छा किया नवीन ने। ये लड़की अपनी औकात भूल रही थी। बहुत अच्छा किया नवीन ने इसे इसकी औकात याद दिला दी। ये कह रहे हैं आप? छोटी बच्ची है ये। मिसेस शाह ने कुछ बोलना चाहा मगर उन्होंने हाथ के इशारे से इनको बोलने से रोक दिया। गुल बीबी को बुला कर लाओ, और एक मुलाजमा को हुक्म देते हुए बोले। वो तेजी से अंदर की तरफ भागी। चंद लम्हों बाद वो गुल बीबी के साथ वहां आई। गुल बीबी ही जल्दी से आगे बढ़ी। इन्होंने हाथ के इशारे से गुल बीबी को वहीं रुकने का इशारा किया। गुल बीबी वहीं रुक गई। सामने स्टेज पर गाल पर हाथ रखे खड़ी ऋषि को देखकर इनको कुछ गलत होने का एहसास हुआ। आज के बाद ये लड़की इस घर में नजर नहीं आई मुझे। गुल बीबी शाह साहब ने गुस्से से मुंखारे। लेकिन साहब जी हुआ क्या है? गुल बीबी परेशान होती हुई बोली। कुछ न हो इसलिए कह रहा हूँ, ले जाओ इसे यहाँ से। ये लड़की अब यहाँ नहीं रह सकती। बस आज की रात है ये यहाँ। सुबह होते ही इस बच्ची को इसके बाप के हवाले कराओ। लेकिन साहब जी ये वहाँ कैसे जा सकती है? इसकी सौतेली माँ बहुत जुल्म करती है इस पर, इसलिए तो यहाँ लाई थी मैं इसको। गुल बीबी दुखी सी हालत में बोली। ये मेरा मसला नहीं है गुल बीबी। मेरा बेटा बहुत डिस्टर्ब रहता है इस लड़की की वजह से, और मेरे बेटे को कोई दुख पहुंचे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुल बीबी ने मदद की नजरों से सब की तरफ देखा मगर किसी ने भी अरिशे के हक में आवाज नहीं उठाई। वो आंखों में आते आंसू साफ करते हुए आगे बढ़ी और ऋषि को बाजू से खींचते हुए चलती गई। ऋषि बस सदमे से की हालत में नवीन को देखती रहेगी। ऋषि की सब आंखों से बहते आंसू देख कर भी नवीन का दिल नहीं पिघला। वो बस मगरूर से खड़ा ऋषि को जाते देखता रहा। गुल बीबी ने ऋषि को कमरे में छोड़कर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और खुद घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई। ऋषि बिस्तर पर गड़ी आंसू बहाती रही। बाहर से आती म्यूजिक की आवाज, मेहमानों को शोर शराबा। अरिशा पूरी रात सो न सकी। पार्टी रात देर तक चलती रही। अरिशा का दिल ही नहीं चाहा खिड़की से झांककर बाहर का मंजर देखने के लिए। वो खिड़की की तरफ नहीं बढ़ी क्योंकि इसकी औकात नहीं थी ये सब देखने की। नवीन के एक थप्पड़ ने इसे इसकी औकात समझा दी थी। इसने अहद कर लिया खुद से कि दोबारा कभी अब औकात से बाहर नहीं निकलेगी। पार्टी का शोर खत्म हुआ तो कुछ देर बाद गुल बीबी थकी हारी कमरे में दाखिल हुई। ऋषि मुंह मोड़े लेटी रही मगर वो जानती थी ऋषि जाग रही है, इसलिए खाना लेकर आई। वो ऋषि को प्यार से उठाकर बिठाया। आज मैं अपनी ऋषि गुल को अपने हाथ से खाने खिलाऊंगी। वो ऋषि की तरफ बिरयानी की चम्मच बढ़ाते हुए बोले। अरिशा मुंह मोड़ गई। नहीं गुल बीबी मुझे नहीं खाना। गुल बीबी में मुस्कुरा दी। खाना तो खाना पड़ेगा अरिशा। गुल अगर खाना नहीं खाओगी तो अपने घर कैसे जाओगी? खाली पेट सफर नहीं कर सकेगी। अरिशा ने चुनकर गुल बीबी की तरफ देखा। वो मुस्कुरा दी। हाँ मेरी गुड़िया, कल सुबह तुम अपने घर जा रही हो, अपने बाबा के पास।
اب یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، اس بڑھاپے میں کب تک تجھے سنبھالوں گی میں؟ یہ لوگ تو میری زندگی میں نہیں پوچھتے، میرے مرنے کے بعد کیا پوچھیں گے؟ اس سے تو اچھا ہے کہ تم اپنی سولی ماں کے ظلم و ستم برداشت کر لو، جو بھی ہوگا کم از کم اپنے باپ کی نظروں کے سامنے تو رہو گی۔ عریشہ چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ بابا سے ملنے کی خوشی میں عریشہ سب بھول گئی۔ اگلی صبح گل بی بی اسے ساتھ لیے چڑھ پڑی۔ صبح نوین عریشہ سے ملنے آیا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ عریشہ کی آنسو بہاتی سبز آنکھیں اس کا دل پگھلا چکی تھی، مگر وہ اب وقت گزر چکا تھا۔ نوین نے آنے میں دیر کر دی۔ وہ ڈیرے ڈیرے قدم اٹھاتے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرہ خالی تھا، نہ تو عریشہ تھی اور نہ ہی گل بی بی۔ نوین کے پاس شرمندگی کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کی وجہ سے ایک ننھی بچی کا اتنے دل دکھا، یہ بات اسے سمجھ آ چکی تھی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ عریشہ جا چکی تھی اور نوین کے پاس افسوس کے سوا کچھ نہیں رہا۔ اپنی انا اور غرور میں بہت بڑی غلطی کر چکا تھا وہ۔ نوین دبے پاؤں کمرے سے باہر کی طرف نکل گیا۔ نوین کے رویوں کا ذمہ دار وہ خود نہیں تھا، غلطی اس کے باپ کی تھی۔ وہ نوین کے سامنے ملازموں کو جھاڑتے، اپنی انا اور دولت کا رعب دکھاتے۔ بچے کا دماغ خالی میموری کا کارڈ کی طرح ہوتا ہے، ہم اس کے سامنے جو بولیں گے وہ وہی دماغ میں محفوظ کرے گا اور وہ وہی ڈیٹا جو پلے کرے گا۔ ہم اس کے سامنے جو رویہ اپنائیں گے وہ وہی رویہ اپنائے گا۔ ہمارے بچوں کے رویے ہماری بدولت ہی بدلتے ہیں، کیونکہ ہم بچوں کے سامنے چہلاتے ہیں، ان کے سامنے دوسرے بچے پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بچہ یہ سب اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے اور پھر اسی طرح بچہ چلانا سیکھتا ہے اور اپنے سے چھوٹے بچے پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس کے پیچھے کی کہیں نہ کہیں ماں باپ کے رویوں کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح نوین نے بھی یہ سب اپنے بابا سے ہی سیکھا تھا، کیونکہ وہ اس کے سامنے ملازموں پر رعب جھاڑتے تھے اور کبھی کبھار ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، اور یہ ہی نہیں سوچتے تھے کہ پاس کھڑے نوین کے ننھے ذہن پر کیا اثر پڑے گا۔ انہی رویوں کی وجہ سے نوین نے عریشہ پر ہاتھ اٹھایا، مگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن اس نے سمجھنے میں دیر کر دی۔ اگلے دن نوین اسکول سے واپس آیا تو اسے گل بی بی نظر آئی تو تیزی سے ان کے کمرے کی طرف بڑھا، مگر کمرہ خالی تھا، عریشہ جا چکی تھی۔ نوین مایوسی سے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی نوین کمرے سے باہر نکلا، سامنے اس کے بابا کھڑے تھے۔ ان کو سامنے دیکھ کر نوین گھبرا گیا۔ وہ تیزی سے نوین کی طرف بڑھے۔ نوین، کیا ہے یہ سب؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو سرور کوارٹر میں؟ ان کی آواز تھوڑی گسیلی تھی۔ بابا میں عریشہ۔ نوین کی آواز لڑکھڑانے لگی۔ کیا عریشہ؟ اب کی بار ان کی آواز مزید اونچی ہوئی۔ بابا میں عریشہ سے اپنی کل کی رویے کی معافی مانگنے آیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ معافی مانگنے آئے تھے تم اس 2 ٹکی کی لڑکی سے؟ وہ غصے سے چلائے۔ جی، نوین نے ڈرتے ڈرتے مختصر جواب دیا۔ معافی؟ آج کے بعد دوبارہ یہ الفاظ نہ آئیں تمہاری زبان پر۔ نوین شاہ ہو تم، تمہارا معیار اتنا گرا ہوا نہیں ہے کہ تم نوکروں سے معافی مانگتے پھرو۔ مگر بابا، میری ٹیچر تو کہتی ہیں ہمیں ملازموں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے۔ نوین سر جھکا کر بولا، تمہاری ٹیچر کیا کہتی ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کے بعد دوبارہ تمہارے منہ سے عریشہ کا نام نہ سنوں میں۔ لیکن بابا، نوین نے کچھ بولنا چاہا، مگر شاہ صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا۔ لیکن کچھ نہیں، اندر جا کر چینج کرو، اب دوبارہ مجھے نظر نہ آنا تم یہاں۔ لیکن بابا، ہمارا دین اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، آج ہی اس بارے میں ایک لیسن پڑھا ہے ہماری ٹیچر نے۔ نوین اپنے بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، بابا تو کیا ہم بس نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہیں؟ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے نوین اندر کی طرف بڑھ گیا اور شاہ صاحب وہیں حیران کھڑے رہ گئے۔ نوین ایسا سوال کرے گا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک 10 سال کا بچی کی سوچ اتنی گہری، وہ حیران و پریشان اندر کی طرف بڑھ گئے۔ اس دن اسی طرح گزرتے گئے۔ نوین خود کو بدلنے کی کوشش کرنے لگا اور کافی حد تک وہ خود کو بدلنے میں کامیاب ہوتا چلا گیا۔ اب وہ ملازموں پر چہلاتا نہیں تھا، غصہ آنے پر صبر کرنا سیکھ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، نوین نے لڑکپنے سے جوانی میں قدم رکھا، چند سال گھر سے دور رہا MBBS کی پڑھائی کے لیے۔ ابھی 15 سال بعد پھر سے ایک بار یہی گارڈن سجایا گیا تھا۔ آج نوین کی 25ویں سالگرہ کا دن ہے۔ MBBS کی ڈگری ملنے کے بعد نوین ایک ہفتے پہلے امریکہ سے واپس آیا پاکستان۔ آج بھی وہ بلیک پینٹ کوٹ، وائٹ شرٹ پہنے مغرور سا سوچوں میں گم کھڑا تھا۔ اپنی سالگرہ کا یہ دن بہت تکلیف دہ تھا۔ آج بھی اس کی آنکھوں میں ننھی سی عریشہ کے آنسوں سے بھری آنکھوں کا عکس تھا۔ اپنے ان 15 سالوں میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب اس نے عریشہ کو یاد نہ کیا ہو۔ ہر رات عریشہ کو یاد کرتا اور اللہ سے دعا کرتا کہ بس ایک دفعہ عریشہ سے مل جائے اسے۔ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گا، اس سے بس ایک بار ملا دے یا اللہ مجھے عریشہ گل سے۔
मगर इसे कभी नहीं मिली दोबारा। अमेरिका से वापस आने पर सबसे पहले वो गुल बीबी के कमरे तर बढ़ा ताकि इनसे रीशा के घर का पता मालूम कर ले। वहां जाकर रीशा से माफी मांग ले, मगर कमरे में गुल बीबी थी ही नहीं। वो यहाँ से जा चुकी थी। यह खबर सुनते ही नवीन के दिल में जो थोड़ी सी उम्मीद थी रीशा से मिलने की, वो भी खत्म हो गई। कुछ लम्हे जिंदगी भर के दुख भर जाते हैं जो पछतावे और दुख के सिवा कुछ नहीं देते। ऐसे ही कुछ नवीन के साथ भी हुआ था। इसकी एक छोटी सी गलती इसे पछतावे के दलदल में धकेल गई थी। पिछले 15 साल से वो इस पछतावे की आग में जल रहा था, मगर इसका दर्द किसी स्रोत कम नहीं हो रहा था। बढ़ती उम्र और तालीम के साथ साथ इसे अपनी गलती बहुत बड़ी महसूस होने लगी। वो पछतावे के दलदल में दस्ता चला गया। हेलो एवरीवन, शाह साहब के मुतवजा करने पर नवीन यादों के इस तसलसल से बाहर निकला। आज एक बहुत ही खास दिन है हमारे लिए। आज मेरे बेटे नवीन शाह की 25वीं सालगिरह है, माशाल्लाह। तो इसके अलावा एक और खुशखबरी, नवीन शाह अब सिर्फ नवीन शाह ही नहीं बल्कि डॉक्टर नवीन शाह बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, नवीन शाह ने MBBS की डिग्री हासिल कर ली है और अब डॉक्टर नवीन शाह अपने दादा डॉक्टर कासिम शाह मरहूम का हॉस्पिटल संभालेगा, जो मेरी वालदा डॉक्टर शाहीना शाह अकेली संभालती आ रही हैं एक लंबे अरसे से। अब इनके साथ डॉक्टर नवीन शाह भी होगा इनका इकलौता पोता। वो काम जो नहीं कर सका मेरे बेटे ने कर दिया। डॉक्टर बनकर अपने महरूम दादा का नाम रोशन कर दिया नवीन शाह। सब ने तालियां बजा बजा कर मुबारकबाद पेश की। शाहना बेगम ने आगे बढ़कर पोते का माथा चूम लिया। लाइबा भी एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो चुकी थी। अब वो मुस्कुराती हुई भाई के गले लग गई। मिसेस शाह भी बहुत खूबसूरत खुश थी बेटे की कामयाबी पर। नवीन बहुत बस चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए खड़ा सबकी दाद वसूल कर रहा था। केक काटने की तकरीब के बाद खाने का दौर चला। गिफ्ट दिए गए और सब अपने अपने घरों को रवाना हो गए। नवीन अपने कमरे में गया तो इसकी नजर सामने टेबल पर पड़े गिफ्ट पर पड़ी। नवीन को हैरत हुई, भला ये गिफ्ट किसने रखा है यहाँ? बाकी गिफ्ट तो बाहर ही रखे हैं अभी, तो फिर ये किसने रखा यहाँ? नवीन गिफ्ट बॉक्स को उठाल कर लौट पुलट कर देखने लगा। इस पर भेजने वाले का नाम नहीं था, बस सामने कार्ड पर खूबसूरत राइटिंग में लिखा था, हैप्पी बर्थडे नवीन शाह। मतलब गिफ्ट भेजने वाला मुझे जानता है। नवीन को हैरत हुई। इसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई, मगर कोई भी नहीं था कमरे में। अचानक खिड़की के पास गमला टूटने की आवाज आई। नवीन तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। सामने एक बिल्ली थी। ओह बिल्ली थी, मैं तो डर ही गया था। नवीन दोबारा सोफे पर आकर बैठ गया और गिफ्ट खोलने लगा। नवीन ने गिफ्ट खोला तो इसमें एक डायमंड लॉकेट था। खूबसूरत अंदाज में दिल बना हुआ था जिस पर एन लिखा हुआ था, वो भी पेवर डायमंड से। नवीन की हैरत की इंतहा न रही। इतना महंगा लॉकेट कौन बेच सकता है? मेरा तो यहाँ ज्यादा फ्रेंड भी नहीं है। हो सकता है मॉम डैड में से किसी ने गिफ्ट किया हो। हाँ, हो सकता है। नवीन ने बॉक्स बंद करके टेबल पर रख दिया। तब अचानक इसकी नजर एक पेपर पर पड़ी। नवीन ने जल्दी से वो पेपर उठाया, खोल कर देखा। बहुत बड़े अल्फाज में सॉरी लिखा हुआ था। सॉरी? किस बात की माफी? कौन भेज सकता है? और सॉरी? मेरा तो किसी से भी झगड़ा नहीं हुआ, तो फिर ये कौन भेज सकता है? जो भी है सुबह मॉम डैड से कंफर्म कर लूंगा। नवीन बॉक्स बंद करके वहीं पर छोड़ते हुए चेंज करने चला गया। चेंज करने के बाद नवीन फिर से सोफे पर आ बैठा। लैपटॉप ऑन करके बैठ गया। तो न जाने क्यों इसका दिल नहीं लग रहा था किसी काम में भी। इसकी नजर बार बार इसी गिफ्ट बॉक्स पर फिसल रही थी। नवीन ने लैपटॉप शट डाउन किया और बॉक्स में से लॉकेट निकालते हुए बेड पर जाकर लेट गया। हाथ में लाकर थामे हर तरफ देख रहा, जैसे जानने की कोशिश कर रहा, मगर बहुत कोशिश के बावजूद भी इसे समझ नहीं आई कि कौन भेज सकते हैं। पूरे दिन का थका हारा नवीन सुबह हॉस्पिटल ज्वाइन करना था। लॉकेट हाथ में थामे हाथ दिल पर रखे वो यूं ही सो गया। एक लड़की स्याह लिबास पहने चेहरा दुपट्टे में छुपाए भागती चली जा रही थी। हर तरफ सेहरा ही सेहरा था। दूर दूर तक कोई इंसान तो दूर की बात कोई जानवर भी नहीं था। नवीन सेहरा पर नंगे पांव बैठा था। इसे समझ नहीं आ रही थी क्या करे। वो बहुत परेशान लग रहा था। रात का अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। नवीन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो यहाँ तक कैसे आया। अचानक इसकी नजर स्याह आवाज में मबलूस तेजी से भागती हुई लड़की पर सुनो। जैसे ही वो नवीन के पास से गुजरने लगी, नवीन ने इसे पुकारा। वह रुकी मगर पलटी नहीं। जैसे ही वो नवीन के पास से गुजरी, नवीन ने इसे पुकारा। वो रुकी मगर पलटी नहीं। नवीन खुद तेजी से उठकर इसके सामने जा रुका। इसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। नवीन ने आगे बढ़ के इसके चेहरे से दुपट्टा हटाया, मगर नवीन इसका चेहरा नहीं देख सका। इसका चेहरा बहुत धुंधला सा था। स्याह लिबास इसका रोशन चेहरा दमक रहा था। नवीन को बिल्कुल चांद सी लगी, जैसे चांद के इर्द काले बादल छाए हुए होते हैं, मगर फिर भी वो अपनी रोशनी की चमक से रोशन रहता है। इस लड़की ने फिर से अपना चेहरा थाम लिया। नवीन को ऐसा लगा जैसे चांद छुप गया हो।
बादलों की ओट में, हाँ, वो चाँद छुपा था बादल में। नवीन को वो बिल्कुल बादलों में छुपे चाँद सी लग रही थी। नवीन इसका चेहरा नहीं देख सका। इस लड़की ने अपने बैग से हंस निकाला और नवीन की तरफ बढ़ी। नवीन डर के पीछे हटा, इसका पाँव फिसला और रेत से फिसलकर दूर जा गिरा। वो लड़की हंसने लगी। इसकी हंसी की आवाज़ हर सौ गूंजने लगी। नवीन की नज़र इसके हाथ में लटकते लाकट पर पड़ी। इसने वो लाकट नवीन की तरफ उछाला। लाकट नवीन ने थाम लिया। अब वो लड़की तेजी से वहां से चल पड़ी। नवीन बस इसे नजरों से ओझल होते देखता रह गया। जैसे ही नवीन की नजर लाकट पर पड़ी, वो दंग रह गया। ये लाकट तो वही है, बस इतना ही बोला था कि नवीन इसकी आंखें खुल गई और हड़बड़ा कर उठ बैठा। लाकट अभी भी नवीन के हाथ में था। नवीन का चेहरा पसीने से तर हो चुका था। इसने जल्दी से गिलास में पानी डाला और एक ही सांस में सारा पानी पी गया। अचानक सर में दर्द की एक लहर उठी। नवीन ने सर को थामने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, वो लाकट इसके चेहरे से टकरा गया। नवीन को कोफत सी हुई। इसने वो लाकट हाथ से आजाद करते हुए साइड टेबल पर रख दिया, मगर फिर किसी अनजाने एहसास के तहत नवीन ने वो लाकट उठा लिया फिर से। कौन थी वो लड़की? इसके हाथ में लाकट था। ऐसे कैसे मुमकिन है? मैं इस लड़की के चेहरे की नहीं देख पाया। वो मुझे मारना चाहती थी क्या? नहीं, वो तो हंस रही थी। इसने लाकट मेरी तरफ उछाला। इसका मतलब वो मुझे जानती है और मैं इसे नहीं जानता। ऐसे कैसे हो सकता है? बिना किसी पहचान के किसी को इतना महंगा गिफ्ट कैसे दे सकते हैं? जरूर मुझे कोई गलतफहमी हुई है। मैंने इस लाकट को कुछ ज्यादा ही ज़हन पर सवार कर लिया है। ऐसा करता हूँ, ये लाकट पहन ही लेता हूँ। हो सकता है फिर से ख्वाब में मिल जाए वो। नवीन अपनी बात पर खुद ही मुस्कुराते हुए सोने के लिए लेट गया। संग मेरे चलना चाहे वो, हाथों में लेकर हाथ मेरा, गुरबत में जीना चाहे वो, संग मेरे चलना चाहे वो। ये सफर नहीं आसान पगले, ये इश्क की गलियां हैं पगले, ये बात समझना जा तू। संग मेरे चलना है वो, इश्क हो ना किसी का, इश्क इस इश्क में पड़ना चाहे वो। रुक जा संभल जा पिघले, ये वक्त अभी कुछ बिगड़ा नहीं, कुछ मोड़ से लड़ना चाहे वो, संग मेरे चलना चाहे वो। नवीन सुबह नमाज पढ़ कर वापस आया तो सब डाइनिंग टेबल पर इसी का इंतजार कर रहे थे। इस घर में वक्त की पाबंदी की बहुत अहमियत थी। वक्त पर सोना, वक्त पर जागना, वक्त पर खाना। मगर नवीन की आदतें कुछ खराब हो चुकी थी। इतनी सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं रही थी इसकी। मगर अब वापस आया तो फिर से वही रूटीन बनाने की कोशिश करने लगा। नवीन अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा ही था कि मिसेस शाह ने इसे रोक लिया। नवीन, इधर आओ, पहले नाश्ता करो, बाकी काम बाद में कर लेना। नाश्ता कितना ज़रूरी होता है सेहत के लिए, ये तो तुम खुद भी जानते हो, है ना डॉक्टर नवीन शाह जी? नवीन मुस्कुराते हुए कुर्सी खींचकर बैठ गया। सबको मुश्तरका सलाम किया और नाश्ता करने में मसरूफ हो गया। नाश्ता करने के बाद नवीन अपने कमरे में जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, फिर रुक कर वापस उल्टा, मॉम डैड, बल्कि मुझे आप सबसे कुछ पूछना है। सब नवीन की आवाज़ पर इसी तरफ मुतवज्जो है। ये लाकट आप सब में से किसने गिफ्ट किया है मुझे? नवीन लाकट गले में से उतारते हुए इन सबको दिखाते हुए बोले, नहीं, शाह साहब ने सर नफी में लाया। इसे शाह में भी का लाइबा ने नवीन के हाथ से वो लाकट पकड़ा और इसे अच्छी तरह देखने लगी। इसकी आंखें हैरत से फैल गई। वाह वाह, ये तो डायमंड है। लाइबा पर जोश होते हुए बोली, हाँ मुझे पता है ये डायमंड है। यही तो परेशानी वाली बात है। आखिर इतना महंगा गिफ्ट दिया किसने मुझे? किस दोस्त ने गिफ्ट कर दिया होगा? नवीन, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? वे शाह साहब उकताने वाले अंदाज में बोले, नहीं डैड, ये मेरा कोई दोस्त नहीं है और ना ही इतना महंगा कोई अनजान मुझे क्यों देगा। हाँ ये बात तो ठीक है। खैर मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। शाह साहब एक नज़र घड़ी पर डालते हुए वो बोले, ओके डैड। नवीन मुस्कुराते हुए बोला, ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज हॉस्पिटल में तुम्हारा पहला दिन है, उम्मीद है अच्छा गुजरेगा तुम्हारा। नवीन के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोलकर वहां से चल पड़ा। नवीन भी मुस्कुरा दिए, वैसे भाई मुझे तो लगता है किसी लड़की ने भेजा है आपको। इधर लाओ, तुमसे तुम्हें बात करना ही फजूल है। नवीन ने लाइबा के हाथ से लाकर लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर लाइबा ने हाथ पीछे खींच लिया। हो सकता है भाई कोई लड़की हो जो छुप छुप कर आपसे मोहब्बत करती हो, सामने ना आना चाहती हो, इसलिए चुपचाप अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया डायमंड बेचकर। ऐसी कोई लड़की ना मेरी जिंदगी में थी और ना ही होगी। तुम ये फजूल बातें बंद करो और मुझे ये वापस करो। नहीं भाई, ये फजूल बातें नहीं है, हकीकत आपके सामने है, मगर आप देख नहीं रहे। आप माने या ना माने, ये किसी लड़की ने ही भेजा है आपको। एक दिन ये बात साबित हो जाएगी। मॉम देख रही हैं आप कैसी बातें कर रही है लाइबा। ये सीरियस देखकर इसकी दिमाग खराब हो चुकी है। नवीन को चिढ़ होने लगी थी लाइबा की बातों से। हाँ हाँ देख रही हूँ, सही तो कह रही है। नवीन ने चूं कर अपनी मामा की तरफ देखा। वो दोनों ही खिलखिला के हंसने लगी।
नवीन भी मुस्कुरा दिया। लाइबा ने लॉकेट नवीन की तरफ बढ़ा दिया, मगर जैसे ही नवीन ने लॉकेट थामने के लिए हाथ बढ़ाया, लाइबा ने फिर से लॉकेट वापस खींच लिया। क्या हो गया है भाई, इतनी बेचैन क्यों हो रहे हैं आप? अब तो मुझे यकीन हो गया है, पक्का ये किसी लड़की ने ही गिफ्ट किया, तभी तो आपका दिल बेचैन हो रहा है इसके दूर जाने पर। नवीन ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर लाइबा का कान खींचा, एक हाथ से और दूसरे हाथ से लॉकेट खींचता, इसके हाथ से छोटी हो तो छोटी ही रहो, बड़ी बनने की कोशिश मत करो, आइंदा ऐसी फजूल बातें मत करना। लाइबा ने जल्दी से सर हाँ में हिला दिया। नवीन ने मुस्कुराते हुए इसके कान छोड़ दिए। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करना जाऊँ मैं। नवीन लॉकेट गले में डालते हुए फिर से कुर्सी पर बैठ गया। देखा मामा, अपने भाई ने लॉकेट फिर से गले में डाल दिया, इसका मतलब तैयारी कर ली अब भाई की शादी की, भाई भी की एंट्री हो गई है इनकी लाइफ में। नवीन ने गुस्से से लाइबा को घूरा और फिर से खुद भी मुस्कुरा दिया। मैंने इसलिए पहना है ताकि हॉस्पिटल जाकर दादों से पूछ सकूं कि उन्हें तो नहीं किया गया गिफ्ट, पॉकेट से गुम ना हो जाए, इसलिए गले में पहन रखा है। वाह वाह, लाइबा दाद देने लगी। भाई आपके आइडिया पर, तुम ये सब छोड़ो, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। तैयार होकर तुम भी नीचे आ जाओ जल्दी। आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनने वाला मैं। मुझे नहीं जाना भाई, मेरा मूड नहीं है आज जाने का। जब से मैं आया हूँ यही सुन रहा हूँ, मगर आज नहीं। जल्दी से जाओ वरना ऐसे हुलिये में ही ले जाऊंगा तुम्हें। मुंह भी धोया हुआ है तुमने। मॉम, लाइबा ने मुंह की तमाम की तरफ देखा कर रोने वाली एक्टिंग की। मिसेस शाह कंधे चलाती हुई वहां से वापस चल पड़ी। नवीन के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। लाइबा पैर टचकती हुई ऊपर की तरफ बढ़ गई और नवीन मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नवीन तैयार होकर लाइबा का इंतजार करने लगा। जैसे ही लाइबा आई तो वो दोनों बाहर की तरफ बढ़ गए। गुड गर्ल, नवीन यूनिवर्सिटी की गेट पर गाड़ी रोकते हुए बोला। लाइबा मुस्कुराती हुई गाड़ी से बाहर निकल गई। गुड गर्ल तो वो लाकट वाली है, जब मिल जाए मुझे बताना जरूर भाई। लाइबा दूसरी साइड पर गाड़ी का दरवाजे से झांकते हुए बोलकर तेजी से यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ गई। नवीन ने मुस्कुराते हुए गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। मैं आई कम ऑन। कमरे नवीन के दरवाजा नॉक करते हुए बोला। सामने कुर्सी पर एक 55 साल खातून बैठी थी। इन्होंने अपनी ऐनक थोड़ी नीचे कर नवीन पे एक नजर डाली और फाइल देखने में मसरूफ होगी। नो, वो गुस्से से बोली। व्हाट? नवीन को जैसे सदमा लगा। यू आर लेट। डॉक्टर नवीन शाह। वो नजरें फाइल पर जमाई बोली। मैं लेट नहीं हूँ। नवीन शाह ने कभी लेट होना सीखा ही नहीं। मैं 2 मिनट से यहाँ खड़ा हूँ, अगर आप इन 2 मिनट को माइनस करें तो आपको पता चल जाएगा मैं लेट नहीं हूँ। ये सब मैं नहीं जानती। आप 2 मिनट लेट हैं, आप वापस जा सकते हैं। कल से ज्वाइन करना है आप, आपकी ड्यूटी कल से शुरू होगी। बट मैम नो। डॉक्टर नवीन शाह, आपके एक एक सेकंड लेट होने पर पेशेंट की जान जा सकती है। आप डॉक्टर तो बन चुके हैं मगर वक्त की पाबंदी नहीं सीखे आप अब तक। कल से आप अपनी ड्यूटी टाइमिंग से 5 मिनट पहले यहाँ मौजूद हों, वरना आपकी मर्जी, आप कोई और हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं। नवीन की कोई बात नहीं सुन रही थी। आई एम रियली सॉरी मैम। नवीन कमरे से बाहर दाखिल हो चुका था। नवीन इनके गले में बाहें डालते हुए बोला और अपनी दादों की गाल चूमते हुए सॉरी बोल रहा था। मुस्कुरा दी। इट्स ओके बट रूल्स आर रूल्स। नवीन, आइंदा इस बात को जहन में रखना, मेरे असूल सबके लिए एक जैसे हैं। ये मत समझना कि दादों को हॉस्पिटल है, दादो इंचार्ज हैं तो माफ़ी मिल जाएगी। ओके मैम। नवीन इनको सलूट करते हुए बोला और बैठो। खुश आमदीद। वो नवीन को बैठने का इशारा करते हुए बोली। थैंक्स मैम। नवीन कुर्सी खींचते हुए बैठ गया। वेलकम। उम्मीद है ये मेरी तवक्कुआत पर पूरा उतरोगे और दादा का नाम खूब रोशन करोगे। बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह। नवीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सो क्या हुक्म मेरे लिए? मैम मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी है जी। 1 मिनट। सवर कान से लगाकर कुर्सी पर किसी से बात करने लगी। कमरे का दरवाजा नाको का। मॉर्निंग से मिलेंगे डॉक्टर नवीन शाह है। सामने से एक फीमेल डॉक्टर खड़ी थी। नवीन, हेलो। नवीन ने इनकी तरफ हाथ बढ़ाएगा और नवीन, ये है डॉक्टर अफशान, न्यूरो स्पेशलिस्ट। इससे पहले कि वो तारीफ करवाती, डॉक्टर अफशान नवीन ने हाथ मिलाते हुए बोली। डॉक्टर शाहाना मुस्कुरा दी। आई एम डॉक्टर नवीन शाह, न्यूरो स्पेशलिस्ट टू। नाइस टू मी यू डॉक्टर नवीन। डॉक्टर अफशान ने मुस्कुराते हुए नवीन का हाथ छोड़ा। सेम हेयर। नवीन ने मुस्कुराते हुए बोला। डॉक्टर अफशान, आप ले जाएं डॉक्टर नवीन को और बाकी न्यूरो सर्जन से भी तरफ करवा दें इनका। न्यू श्योर में, अफशान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आए डॉक्टर नवीन, मैं आपको अपने डिपार्टमेंट में ले चलूँ और बाकी डॉक्टर से मिलवा दूँ। ओके नवीन डॉक्टर अफशान के साथ चल पड़ा। थोड़ी
थर्ड फ्लोर पर अफसर डॉक्टर नवीन को न्यू और इमरजेंसी वार्ड्स डिपार्टमेंट में लेगी। स्टाफ रूम में मौजूद डॉक्टर्स ने नवीन को तारफ करवाया। सर, यहाँ हमारे साथ 6 डॉक्टर्स और मौजूद हैं। इन डिपार्टमेंट में डॉक्टर तलहा, डॉक्टर आबद, डॉक्टर शाहजर और आप डॉक्टर नवीन और शाहीन, डॉक्टर राधा, डॉक्टर फायदा, डॉक्टर अफशा और डॉक्टर अबीरा है। डॉक्टर अबीरा और डॉक्टर तलहा ऑपरेशन थिएटर में हैं। इनसे मैं बाद में तारफ करवा देंगे आपका। बाकी सब तरह से आप मिल चुके हैं। इस तरफ इस सारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हम 8 डॉक्टर्स पर है। न्यू फाइंड न्यू आईग्यू, यहाँ सब कुछ बुलाकर एक फैमिली की तरह मिलजुल कर रहना है। हम सबको अपने पेशेंट्स का ख्याल रखना है। या श्योर, नाइस टू मीट यू एवरीवन, नवीन मुस्कुराते हुए बोला। सर आइए, आपको सारे पेशेंट की फाइल्स दिखा दूँ और नर्सिंग स्टाफ से भी तारफ करवा दूँ आपका। डॉक्टर अफशा नवीन को साथ लिए वार्डर की तरफ बढ़ गई। एक एक पेशेंट की फाइल दिखाने लगी। किसी पेशेंट का ऑपरेटेड हो चुका था, किसी का आज होना था, किसी की कंडीशन नॉर्मल थी और किसी की बहुत सीरियस। नवीन सब पेशेंट्स की फाइल देखकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वैसे तो मेल डॉक्टर स्टाफ रूम अलग था, मगर नवीन ने अपने लिए अलग कमरा तैयार करवाया था। कुछ देर बाद ही कमरे का दरवाज़ा नाक हुक्म और नवीन फाइल देखते हुए मसरूफ बैठा था। दरवाजे पर डॉक्टर अफशा थी। डॉक्टर नवीन, डॉक्टर तलहा आपसे मिलना चाहते हैं, वो ऑपरेशन थिएटर से आ चुके हैं। तो क्या मैं इनको भेज दूं? जी डॉक्टर अफशा, भेज दें इनको। मुतसिर सा जवाब देकर नवीन फिर से फाइल देखने में मसरूफ हो गया। मैं आई कम ऑन, डॉक्टर नॉक करते हुए नवीन के फाइल से नजरें हटाकर सामने देखा। भाई सिर्फ डॉक्टर तलहा वो दरवाजे पर खड़े ही अपना तारफ करवाने लगे। नवीन के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वेलकम डॉक्टर तलहा, प्लीज कम ऑन। डॉक्टर तलहा मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए। नवीन की तरफ हाथ बढ़ाया। नवीन ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थाम लिया। नाइस टू मीट यू डॉक्टर तलहा, नवीन हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए बोला। सेम हेयर, डॉक्टर तलहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मरीजों के बारे में तो सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी होंगी आपको डॉक्टर अरशाद जी, नवीन ने मुख्तसर जवाब दिया। तो कैसा लगा हमारा स्टाफ? गुड, अभी तक तो ठीक है ही लगता है, आगे देखते हैं कैसा रहेगा, नवीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आज आप ज्वाइन कर चुके हैं तो नेक्स्ट सेपरेटेड आप ही को करना होगा। डॉक्टर नवीन जी जरूर, यही तो काम करना है मेरा। मैं पेशेंट को देख लेता हूँ, फाइल चेक कर लेता हूँ, फिर करते हैं ऑपरेशन की तैयारी, नवीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि अभी डॉक्टर अफशा ने दरवाजा नॉक किया। डॉक्टर तलहा, एक इमरजेंसी मरीज आया है, अभी ऑपरेट करना पड़ेगा, आप जल्दी से जाएं प्लीज। मैं देखता हूँ। नवीन जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ा। एक लड़की थी जिसकी उम्र कम से कम 16 या 17 बरस थी। सर में लोहे की सलाख लगने से दिमाग में चोट आई थी। फौरी तौर पर इसे ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल किया गया। नवीन ने इसका ऑपरेट किया। नवीन के हाथ एक और फीमेल सर्जन भी थी। डॉक्टर तलहा भी यहाँ आ गए। चंद घंटे बाद ऑपरेशन मुकम्मल हुआ। मरीज को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वेल डन डॉक्टर नवीन शाह, पहले ऑपरेशन कामयाब रहे पेशेंट। थैंक्स डॉक्टर तलहा। नवीन बस इतना बोल कर ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल गया। नवीन अपने कमरे में जाने के बजाय नीचे की तरफ बढ़ गया। इसका रुख अपने दादों के कमरे की तरफ था। कमरे का दरवाजा नॉक किए बगैर नवीन कमरे में दाखिल हो गया। सामने एक लड़की बैठी थी इनके साथ। ओह आई एम सॉरी, मुझे लगा आप अकेली होंगी, मैं बाद में आता हूँ। नहीं रुके डॉक्टर नवीन शाह, दादों की आवाज़ पर नवीन रुक गया। इनसे मैंने, ये डॉक्टर अबीरा है। वो सामने की बैठी लड़की की तारीफ करवाने लगी। डॉक्टर अबीरा, नवीन को यह नाम के ही सुना सुना सा लगा। ये भी न्यू सर्जन है, अभी जो ऑपरेट किया है आपने, ये आपके साथ ही थी। और याद आया, डॉक्टर अफशा ने बताया था मुझे इनके बारे में, मगर मुलाकात नहीं हुई मकसद की मेरी इनसे। हेलो डॉक्टर अबीर, नवीन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। डॉक्टर अबीर मुस्कुराते हुए नवीन का हाथ थाम लिया। हेलो डॉक्टर नवीन शाह, और नवीन का हाथ थामते हुए बोले, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वो बोल रही थी, नवीन बस इसके चेहरे को तकता जा रहा था। एक अजीब सी कशिश थी इसके चेहरे में। नवीन इसका हाथ था, मैं इसके चेहरे में खो सा गया। अच्छा लगा आपसे मिलकर, अबीर ने फिर से दवा दोहराया, जिसका मतलब था कि मेरा हाथ छोड़ दें। सेम है, नवीन ने चूम कर इसका हाथ छोड़ दिया। मैं चलती हूँ। अबीर को डॉक्टर नवीन का देखना कुछ अजीब सा लगा था। अपनी घबराहट छिपाते हुए तेजी से कमरे से बाहर निकली। कुछ काम था नवीन शाह हाना बेगम ने जब नवीन को गुमसुम सा खड़ा देखा तो बोल पड़ा, दादो ये डॉक्टर अबीरा, कहीं देखा है मैंने पहले भी इनको, मगर मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। देखा होगा कहीं है, इससे मैं इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। नवीन चुका, नहीं दादा मैं परेशान तो नहीं हूँ, बस याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ देखा है डॉक्टर अबीरा को। इट्स ओके नवीन, ये बताओ किस काम से आए थे। वो बात को पलटते हुए बोली, दादी दादो मैं तो बस ये बताने आया था कि मेरा अपना हॉस्पिटल में पहला ऑपरेशन कामयाब हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे बेटा, तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। बस इसी तरह दिल लगी से अपना काम करते रहना, अपनी सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं, स्टाफ को कैसे हैंडल करना है ये तुम पर है। बाकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। ओके नवीन इनका माथा चूमते हुए कमरे से बाहर निकल गया। इस तरह पेशेंट्स के साथ दिन गुजर
नवीन का लंच इसने शहाना बेगम के साथ किया। शाम को इवनिंग शिफ्ट वाले डॉक्टर्स आ गए। इवनिंग शिफ्ट में 2 डॉक्टर मेल्स थे और डॉक्टर हुज़ैफा और डॉक्टर हेजल थे। नवीन को ये देखकर हैरानगी हुई कि डॉक्टर अबीरा सेकंड शिफ्ट में भी यहीं थी। आप घर नहीं जाएंगी डॉक्टर अबीरा? नवीन की आवाज़ पर अबीरा ने चौंक कर सर ऊपर उठाया। वो सफ़र में बैठी अपने बैग से कुछ ढूंढने में मसरूफ थी। नवीन इस तरह अचानक कमरे में आने पर बचूंगी। क्या हुआ डॉक्टर अबीरा? सब खरीद तो है ना? नवीन इसकी घबराई सूरत देखकर खुद भी घबरा गया। जी जी सब खैरियत है। अबीरा अपने माथे पर आए पसीना नमटे सर साफ करते हुए बोली। अगर सब खैरियत है तो आपके चेहरे पर पसीने क्यों आ रहे हैं? नवीन को हैरानगी अबीरा के पसीने साफ करने पर नहीं, वो आप अचानक से कमरे में आ गए, बस इसलिए मैं थोड़ा घबरा गई। ओ आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। नवीन सोफे पर बैठते हुए बोला। इट्स ओके डॉक्टर नवीन शाह, अबीर एक एक लफ्ज चबाते हुए बोली। नवीन को इसके लहजा थोड़ा अजीब लगा। कुछ तो था इसके लहजे में। नवीन चुप सा गया। वो फिर से अपने बैग में कुछ ढूंढने में मसरूफ हो गई, मगर इसके लहजे ने नवीन को सोच में डाल दिया। वो थोड़े ही हाथ जमाई, दूसरे दरवाजे सिर में बांधे, अजीब सी कशिश में पड़ गया। कश्मकश में पड़ गया। अबीर अपने बैग में ही मसरूफ थी, जबकि नवीन इसे ही देखने में मसरूफ था। कमरे तक आते सुनहरी दुधियाली रंगत बिना मेकअप के भी वो खूबसूरत लग रही थी। लम्बी घनी पलकें चेहरे पर गिरे, न जाने किस परेशानी में गुम थी वो। न जाने क्यों नवीन को एक अजीब से एहसास में आन गया। ऐसे लगा ये चेहरा पहले भी वो कहीं देख चुका है, मगर याद नहीं आ रहा कहाँ। डॉक्टर बीरा नवीन ने एक अजीब से एहसास में गुम से पुकारा। बैग में कुछ ढूंढने में मसरूफ इसने हाथ एक पल के लिए रुकी। इसने नजरें उठाकर नवीन की तरफ देखा। जी, वो मध्यम सी आवाज में बोली। बस यही लम्हा नवीन इसकी गहरी आंखों में खो सका। कुछ तो था इसकी आंखों में। नवीन पलकें झपकाए बिना देखने लगा। नवीन को ऐसे जब तक देखते पाया तो अबीर नजरें झुकाने पर मसरूफ होगी। नवीन भी शर्मिंदा सा इधर उधर देखने लगा। वो मैं ये पूछना रहा था कि आप अभी तक ही नहीं, कोई परेशानी है क्या? नहीं, मेरा मतलब है जी, एक परेशानी है। मेरी हॉस्टल रूम की चाबियां नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ गुम होगी। वैसे तो मैं रोज बैग में ही रखती हूँ। वो वैसे ही नजरें झुकाई बोलने लगी। मुझे पता है आपकी चाबियां किधर हैं। नवीन की बात पर फिर चूक गई और नजरें उठाकर नवीन की तरफ देखा। नवीन मुस्कुरा दिया। मतलब मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर नवीन। सुबह जब आपको दादों के साथ बैठे देखा तो चाबियां इस वक्त आपके हाथ में थी, मगर जब आप मुझसे हाथ मिलाने के लिए उठी तो आपने चाबियां टेबल पर ही छोड़ दी थी। इसके बाद आप ऊपर गई और चाबियां वहीं भूल गई। हाँ, याद आ गया। वीर सर पकड़ते हुए बैठ गई। पता नहीं मेरी ये बोलने की आदत कब से ही होगी। वो खुद से ही बढ़ाती हुई अपनी चीजें वापस बैग में रखने लगी। नवीन भी मुस्कुरा दिया। बैग समेटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी, फिर अचानक पलटी। तब तक नवीन इसके साथ दरवाजे तक पहुंच गया था। जैसे ही पलटी नवीन से टकर गई। इसके बाल नवीन के गले में पहने लॉकेट की चेन में फंस गया। अबीर जैसे ही पीछे हटने लगी, इसके बाल अटक के। इसने एक हाथ से अपने बाल थामे और दूसरे हाथ से नवीन की चेन अलग की। आई एम सॉरी डॉक्टर अबीर, वो आप अचानक से रुक कर पलटी तो हमारा टकराव हो गया। आई एम रियली सॉरी। नवीन बोल रहा था, मगर अबीर की नजर इसके गले में लटके लॉकेट पर अटक सी गई। नवीन की नजर जब इस पर पड़ी तो इसने अपने लॉकेट को छुआ। ये क्या हुआ? लॉकेट अच्छा लगा आपको? नवीन मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। अबीर चुप। नहीं, वो बात नहीं है, बस इसकी खूबसूरती और तवज्जो ने मुझे अपनी तरफ माइल कर दिया। बहुत खूबसूरत लॉकेट है आपका। अबीर ने दिल से तारीफ की। खूबसूरत तो होकर किसी ने बहुत प्यार से गिफ्ट दिया है। किसने? अबीर भी पूछे बिना न रह सकी। पता नहीं। नवीन ने मुस्कुराकर कंधे चला दिए। वेरी फनी। वो मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। नवीन भी इसके साथ कदम मिलाते हुए बाहर की तरफ बढ़ा। नो इट्स नाइट फेयर, आई एम सीरियस डॉक्टर अबीर। मतलब? अबीर रोक कर बैठा। मतलब ये कि मैं वाकई नहीं जानता ये किसने गिफ्ट किया है मुझे। नवीन की बात पर वह फिर से हंसने लगा। मतलब आपको ये भी नहीं पता कि किसने गिफ्ट किया है आपको? फिर भी आप अपने गले में पेन रखे है क्यों डॉक्टर नवीन? वो हंसी कंट्रोल करते हुए बोली। मैं नहीं जानता मैंने ये लॉकेट क्यों पहन रखे हैं। मैं कुछ भी सोचने समझने की कैफियत में नहीं रह पाता। जब जब मैं इस लॉकेट को देखता हूँ, ऐसे अजीब सा एहसास पैदा होने लगता है दिल में इसको छूते ही, जैसे किसी अपने का प्यार से जुड़ा हुआ है इससे। नवीन कहीं और ही ख्यालों में गुम लॉकेट को छूते हुए बोल रहा था। फिर तो पक्का ये किस लड़की ने गिफ्ट किया होगा आपको। वो फिर से हंसने लगी और सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। हाँ, ये किस लड़की ने ही गिफ्ट किया है। नवीन इसके साथ चलते हुए बोले। आपकी बात चुगने की बारी अबीर की थी। मतलब आप जानते हैं इस लड़की को? वो हैरान होते हुए बोली। जानता भी हूँ और नहीं भी। अब एक ही बात का क्या मतलब समझूं मैं? अभी न समझी से नवीन की तरफ देखते हुए मतलब ये कि वो लड़की मुझे कल रात ख्वाब में मिली, इसने ये लाकर मुझे दिया, मगर मैं इसके चेहरा नहीं देख सका। अबीर हैरानगी से नवीन की तरफ देखने लगी। मैं सच कह रहा हूँ, नवीन कदम उछलाते हुए बोला। अबीर मुस्कुरा दी। मुझे तो आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है।
अगली बार जब वो लड़की ख्वाब में मिले तो इसका हाथ थाम कर रोक लेना आप इसे। अबीर मुस्कुराते हुई शहाना बेगम के कमरे की तरफ अजान ना करते हुए अंदर दाखिल होगी। नवीन वही दरवाजे के पास सोचों में गुम खड़ा रह गया। हाँ, मैं ऐसा ही कर सकता, मगर मैंने क्यों नहीं किया। थैंक्स डॉक्टर नवीन। अबीर कमरे से बाहर गुमसुम खड़े नवीन की तरफ देखकर मुस्कुराती हुई बोली, थैंक्स फॉर व्हाट। नवीन ने हैरान होते हुए अबीर ने चाबी नवीन के सामने खड़ा ये याद करवाने के लिए। इट्स ओके डॉक्टर अबीर, अगर आप चाहें तो मैं ड्रॉप कर दूं आपको। मैं भी बस निकलने ही लगा हूँ। नहीं, मुझे अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाना अच्छे लगते हैं डॉक्टर नवीन शाह। अबीर के लहजे में फिर से वही अजीब सी तलखी थी। नाइस टू मीट यू डॉक्टर नवीन शाह, खुदाफिज कहकर मिलते हैं। वो नवीन को हैरान करते हुए आगे बढ़ गई और देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गई। नवीन हैरान में परेशान सा शहाना बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गया। इनसे इजाजत लेते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गया। नवीन घर पहुंचा तो मिसेस शाह इसी के इंतजार कर रही थी। नवीन को आता देख के किचन की तरफ बढ़ गई। खाना लगवानो। लाइबा अपनी बॉक्स बिखरे बैठी थी, असाइनमेंट बनाने में मसरूफ थी। नवीन सलाम करते हुए इनके पास आके बैठकर, कुछ मदद चाहिए मेरी? नवीन मुस्कुराते हुए बोला, लाइबा ने मुंह फुसकोड़ा, मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद, आप ही की मेहरबानी है ये। ना मैं यूनिवर्सिटी जाती और ना ही मुझे असाइनमेंट बनानी पड़ती। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ भाई। नवीन हंसने लग पड़ा। और करो छुट्टियां, जब पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगी तो ऐसे ही होगा। जल्दी जल्दी बनाओ अपने असाइनमेंट वरना सजा मिलेगी। ही वेरी फनी भाई। लाइबा भी हंस पड़ी। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ आज का दिन कैसे गुजरा आपका? आपके स्टाफ डॉक्टर्स कैसे हैं, मेरा मतलब इनका रवैया कैसा रहा आपके साथ? हम गुड सफर, स्टाफ बहुत अच्छे, स्पेशली डॉक्टर अबीरा, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। इसे देख कर लगता ही नहीं कि वो सर्जन है, इतनी कम उम्र में सर्जन बन गई। हैरानगी हुई मुझे देखकर। और रैली भाई, लाइबा उन्हें उछालते हुए बोले, जी, और एक तरफ तुम हो जो पढ़ाई से भागती हो। दिल लगाकर पढ़ा करो लाइबा, मैं भी अपनी बहन को एक मुकाम पर देखना चाहता हूँ, कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचने देखना चाहता हूँ, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। लाइबा गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ जी, बस पढ़ाई ही नहीं जाता मैडम से, बाकी इनसे शॉपिंग करवा लीजिए जितनी मर्जी, इनका काम में कभी नहीं थकती ये। राहिम की आवाज़ पर दोनों ने पलट कर देखा। लो जी, आगे आपके शौहरे नामेदार। नवीन राहिम से गले मिलते हुए बोला, कैसे हो हूँ? राहिम मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल ठीक, तुम्हारे सामने तो हूँ साले साहब, तो वो तो मुझे नजर ही आ रहा है। बहुत खुश लग रहे हैं आप। कोई नई खबर? हाँ, फिर किसी की जिंदगी में आने की खबर। नवीन ने आंखों की सुकून देते हुए राहिम की तरफ देखा। बिनाई हो इसलिए लिहाज करता हूँ तेरा, वरना अभी तकड़ा जवाब देता तुम्हें। राहिम का जोरदार कह गूंजा नवीन के जवाब पर। साले हो इसीलिए मजाक करता हूँ यार, तुम तो हो बुरा ही मान गए शायद। नहीं नहीं, मैं अपनों की बात का बुरा नहीं मानता, इट्स ओके यार। नवीन अपना हियत बड़े ले जाए बोला। राहिम भी मुस्कुरा दिया। लाइबा ने एक नाराजगी भरी नजर राहिम पर डाली और असाइनमेंट पर नजर जमाने बैठ गई। ये आए है या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइबा असाइनमेंट पर तेज तेज हाथ चलाते हुए बोली, बुरी बात लाइबा, अभी एक साल ही हुए हैं तुम दोनों की निकाह को, और तुम जब देखो लड़ाई ही करती रहती हो। जब देखो तुम दोनों की नाराजगी ही चल रही होती है, तुम रूठने में लगी रहती हो और ये तुम्हें मनाने में। कब मन यार, बड़े कब होगे तुम दोनों? जब देखो बच्चों की तरह लड़ाई झगड़े में ही लगे रहते हो, कभी सीरियस भी हो जाया करो तुम दोनों। नवीन ने दोनों की क्लास लगा दी। मैंने क्या कर दिया? राहिम कंधे को उछलाते हुए बोला, भाई आपको लगता है कि मैं जो करती रहती हूँ, इनसे मुझे कहाँ थे ये? आज हमारे निकाह को एक साल हो गया है, एनिवर्सरी थी हमारी, किसी ने विश नहीं किया मुझे, और इनको तो याद भी नहीं था। मैंने खुद मैसेज किया इनको सुबह, जरा मेरी फिक्र नहीं है इनको। और आप भाई, आपसे भी नाराज हूँ, आपको भी याद नहीं था। राहिम और नवीन ने एक दूसरे की तरफ देखा। राहिम ने मुस्कुराते हुए कंधे उछला दिए, जिसका मतलब था, अच्छा हुआ तुम भी फंस गए मेरे साथ। लाइबा, एनिवर्सरीज तो शादी के बाद होती है, निकाह के बाद तो नहीं। नवीन ने बात टालना चाहिए, मगर लाइबा गुस्से से पैर टचकती हुई अपने कमरे में भाग गई। लाइबा सुनो तो यार। राहिम भी इसके पीछे दौड़ा। उफ, क्या जिंदगी है दोनों की। नवीन गहरा सांस लेते हुए बोला। राहिम इसे सीढ़ियों से वापस आता दिखाई दिया। क्या हुआ? नवीन इसे वापस आता दिखाई दिया। दरवाजा बंद कर दिया, बैठ गई है आपकी लाडली बहन। राहिम सोफे पर बैठते हुए बोला। नवीन भी बैठ गया। पता नहीं क्या बनेगा तुम दोनों का, हर कब तक बड़े होगे तुम दो लोग। नवीन शर्ट के बाजू फोल्ड करते हुए बोला, जब तुम्हारी शादी होगी ना तब पूछूंगा मैं तुम्हें। नवीन शाह, राहिम परेशान सा बोला, सोचना भी मत, मैं डॉक्टर ठीक हूँ, मुझे इन सब मामलात में नहीं पड़ना। बीवी मतलब हर वक्त का सर दर्द। एक डॉक्टर की जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल से दो चार होती है, ऊपर से शादी, मतलब टेंशन टेंशन टेंशन। नवीन चहलाते हुए बोला, मतलब तुम शादी नहीं करोगे? राम को तो जैसे झटका लगा। तो क्या अब तक मैं तुम्हें किसी फिल्म की कहानी सुना रहा था?
जो इतने हैरान होकर पूछ रहे हो, मतलब तुम शादी नहीं करोगे? राहुल फिर से अपना सवाल उठाया। हाँ, नहीं करूँगा मैं शादी। तुम्हें कोई मसला है क्या? नवीन चहलाते हुए बोला। हाँ हाँ, मुझे बहुत बड़ा मसला है, मतलब कि मैं तुम ही मेरा सबसे बड़ा मसला हो। जब तक तुम शादी नहीं कर लेते हमारी शादी नहीं हो सकेगी। बस हमारा निकाह शुदा ही रहेंगे जब तक तुम शादी नहीं बन जाते, शादीशुदा नहीं बन जाते। राहुल विशाल से बोला। नवीन हंस पड़ा। अब ये किसने कह दिया तुमसे? कौन कह सकते हैं बोला। दी ग्रेट नानो जी का फरमान है ये। दादू ने कब यह हुक्म सादर किया? मुझे तो नहीं पता चला। नवीन मुस्कुराते हुए बोल पड़ा। राहिम को नवीन की मुस्कुराहट जले पर तेल छिड़कने की बराबर लग रही थी। बस यार, तुम क्या जानो मैं किस किस दर से गुजर रहा हूँ। आज सुबह से मसरूफ था ऑफिस में, फोन घर पर भूल गया था। सुबह मुझे याद था कि आज हमारे निकाह की सालगिरह, मगर लाइबा से बात नहीं कर सका। जैसे ही घर पहुंचा फोन देखा तो लाइबा के मिस कॉल और मैसेज आए हुए थे। जिस बात का डर था वही हुआ। लाइबा को कॉल करता रहा मगर नंबर बंद किए बैठी थी। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और यहाँ बैठ पहुंचा था मैं। राहिम प्रशांत से अपना दुख भरी कहानी सुना रहा था। गलती की है तो भुगतो अब। मैं तो चला चेंज करने, मॉम खाना खाना लगा रही हैं, मैं आ रहा हूँ, साथ मिलकर खाते हैं, इसके बाद कोई हल निकालते हैं। वाह क्या कहने आपके साले साहब, मेरी बीवी नाराज है और आप कह रहे हैं खाना खा लो पहले। तुम खाते रहो खाना, मैं जा रहा हूँ अपनी रूठी बीवी को मनाने। राहिम सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। नवीन मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नवीन फ्रेश होकर नीचे आया तो इसने हैरत की इंतहा नहीं। लाइबा और राहिम दोनों डाइनिंग टेबल बैठे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अजीब है ये दोनों, मुझे लगता है कि एक ना एक दिन मैं पागल हो जाऊंगा इन दोनों की वजह से। नवीन मुस्कुराते हुए कुर्सी खींच कर बैठ गया। मॉम डैड कल तक वापस आ जाएंगे ना? नवीन मुस्कुराते हुए बोला। हाँ शायद, अभी कंफर्म नहीं है तो बात कर लेना खाना खा के इनसे। ओके, नवीन मुस्कुराते हुए जवाब दिया और खाना खाने में मसरूफ हो गया। मिसेस शाह भी कुर्सी में खींचते हुए बैठ गई। चलें वेक शुरू करें सब खाना। मिसेस शाह की आवाज पर इन दोनों ने भी खाना शुरू कर दिया, मगर इनकी बातें साथ साथ चलती रही। अभी कुछ देर पहले तो तुम दोनों दुश्मनों की तरह लड़ रहे थे और अब सुलह भी कर ली। राहुल का नवीन बोल ही बड़ा। ये राज है, राहिम सरगोशी के अंदाज में बोला। लाइबा वहां से टीवी के लाउंज की तरफ बढ़ गई। मिसेस शाह मुलाजमा से बेहतर समेटने का कहकर चलेगी। कैसा राज? नवीन हैरानगी से बोला। आओ मैं दिखाता हूँ। राहिम वहां से उठकर चल पड़ा। नवीन भी इसके पीछे चल पड़ा। वो देखो, राहिम ने नवीन को लाइबा की तरफ देखने को कहा। हाँ, क्या देखूं? लाइबा अपनी असाइनमेंट रेडी कर रही है। और क्या है इसमें राज वाली कौन सी बात है? नवीन ने लापरवाही से कंधे उछलाते हुए बोला। वो असाइनमेंट रेडी नहीं कर रही, सेमट कर रही है। मतलब? नवीन को इसकी बात समझ नहीं। मतलब ये क्या? वो असाइनमेंट मेरी जिम्मेदारी है। राहुल मुंह लटकाते हुए बोला। व्हाट? इसने कहा। वो तुमने मान लिया? स्टूपिड इंसान, तुम दोनों एक दूसरे से बढ़कर है बेवकूफ हो। अभी बात करता हूँ लाइबा से। नवीन लाइबा की तरफ बढ़ा। नहीं, रुक जाओ नवीन, ऐसा मत करना प्लीज। पहले बड़ी मुश्किल से नाराजगी खत्म की है इसने, अगर तुमने कोई बात की तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। नवीन ने इसे एक अदद घूरी से नवाजा। इट्स ओके यार, तुम नहीं समझोगे। मेरी थोड़ी सी मेहनत से अगर लाइबा के चेहरे में मुस्कुराहट आती है तो मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। बेवकूफ इंसान, नवीन बोलते हुए आगे बढ़ गया। राहिम इसके पीछे दौड़ा। ये बेवकूफ किसको बोला साले? राहिम इसका रास्ता रोकते हुए बोला। इतना ख्याल रखते हैं तुम्हारी बहन का और तुम शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझ पर रौब डालते हो। राहिम उसे सवाला। आई डोंट केयर, तुम अपनी बीवी का ख्याल रखते हो, तुम्हारा फर्ज है। नवीन मुस्कुरा कर जवाब देते हुए आगे बढ़ गया। जोरू का गुलाम। नवीन पलट कर जवाब देते हुए आगे बढ़ा और राहिम इसके पीछे दौड़ा। क्या बोला तू? जोरू का गुलाम? नवीन ने फिर से दोहराया। बेटा तेरा भी पता लग जाएगा जब तेरे हाथों में भी बीवी नाम की हथकड़ी लगेगी ना, तब पूछूंगा मैं तुम्हें। वो दिन नवीन शाह की जिंदगी में कभी नहीं आएगा, लिख कर रख लो। और रैली भाई, लाइबा अचानक से वहां आ गई। जो चुपके चुपके से कोई आपके महंगे तोहफे बेचती है, वो कौन है? ये क्या माजरा है? राहिम हैरान होते हुए पूछा। मैं बताती हूँ आपको राहिम, ये देखें। लाइबा ने नवीन के गले में चमकती चेन की तरफ इशारा किया। राहिम ने जल्दी से आगे बढ़कर चेन को देखा, साथ ही इसकी नजर लाकट पर पड़ी। ओ माय गॉड, इतना महंगा और प्यारा गिफ्ट तो कोई लड़की ही दे सकती है। हाँ ना, वही तो, भाई की सालगिरह में कोई लड़की चुपचाप भाई के कमरे में ये गिफ्ट छोड़कर चलेगी? ग्रेट, राहिम आंख दबाते हुए बोला। नवीन चुपचाप इन दोनों की बातें सुन रहा था। इसने गुस्से से वो लाकर उतारा और पास पड़ी बास्केट में फेंक दिया। बस अब खुश हो तुम दोनों? गुस्से से लाइबा और राहिम की तरफ पलटा। वो दोनों हैरान और परेशान से नवीन को देखने लगे। ऐसा कुछ नहीं है, अब ये चेयर्स क्लोज ही करो, चैप्टर क्लोज ही करो। वो गुस्से से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। लाइबा और राहिम ने हैरानगी से एक दूसरे को देखा। सच हमेशा कड़वा होता है। राहिम बोला तो दोनों ही हंस हंस के लूट-पुट हो गए। टीवी लॉन्च की तरफ बढ़ गए। दिमाग खराब हो गया है इन दोनों का। नवीन गुस्से से कमरे के दरवाजा बंद करते हुए सोफे पर बैठ। जिसने भी ये गिफ्ट भेजा है लड़का है या लड़की मैं नहीं जानता, मगर जिस दिन सच मेरे सामने आएगा गला दबा दूंगा मैं इसका।
غصے سے لائٹ بند کرتے ہوئے سونے کے لیے لڑ گیا۔ سب ناشتے کے بنا ہی ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ ہیلو ڈاکٹر نوین، ڈاکٹر عبیرہ کی آواز پر نوین پلٹا۔ ڈاکٹر طلحہ بھی پاس بیٹھے تھے، دونوں کسی مریض کی فائل تھامے بحث کرنے میں مصروف تھے۔ نوین کو آتا دیکھ کر عبیرہ سے توجہ کیا۔ نوین جواب دیے بغیر ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عبیرہ اور طلحہ نے حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عبیر شرمندگی سے ہوتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر آگے بڑھ گئی۔ نوین غصے سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے ٹیبل پر بڑے گلاب کے سرخ پھولوں کے گلدستے پہ پڑی، اس کا غصہ تھوڑا کم ہوا۔ آگے بڑھ کر گلدستہ اٹھایا، اس کے ساتھ ہی ایک ویلکم کا کارڈ پڑا ہوا تھا۔ نوین نے گلدستہ واپس رکھ کر کارڈ اٹھا کر کھولا، جس سامنے بڑے بڑے الفاظ میں ویلکم ٹو دی ہاسپٹل، ڈاکٹر نوین شاہ، سیکنڈ ڈے مبارک ہو۔ نوین کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آخر کون بھیج سکتا ہے یہ ہے؟ کارڈ پر بھیجنے والے کا نام نہیں لکھا تھا۔ یہ جو کوئی بھی ہے مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میرے گھر اور ہاسپٹل یہاں تک کہ میرے کمرے کا بھی پتہ جانتے ہیں۔ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ وہ کرسی پر بیٹھ کر یعنی میز پر ٹکائے بالوں میں ہاتھ رکھے سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ پھر رات والی لاکٹ والی بات یاد آنے پر پھر سے غصے میں آ گیا۔ گو ٹو دی ہیل! غصے سے گلدستہ اٹھا کر باسکٹ کی طرف اچھلایا۔ تب ہی ڈاکٹر عبیرہ نے دروازہ نہ کیے کمنٹ نوین بنا دیکھے بولا، اتنا بھی کیا غصہ ڈاکٹر نوین؟ آخر ان معصوم پھولوں کا کیا قصور ہے جو انہیں اس قدر بے دردی سے اٹھا کر پھینکنا ہے آپ نے؟ ڈاکٹر عبیر کی آواز پر نوین چونکا۔ اسے اپنا ڈاکٹر عبیر سے کچھ دیر پہلے والا رویہ یاد آیا۔ سر ندامت میں جھکا دیا۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر عبیرہ۔ سوری کس لیے؟ عبیرہ بکھرے ہوئے پھولوں پھر سے ایک ساتھ باندھتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی۔ نوین حیرت سے عبیر کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنا اچھا رویہ جیسے رویہ میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے ساتھ عبیرہ کی اختیار کیا تھا۔ اگر کسی اور کے ساتھ ایسا کیا ہوتا تو شاید وہ دوبارہ مجھ سے بات نہ کرنا پسند کرتے، لیکن ڈاکٹر عبیرہ بہت الگ ہے، بہت اچھے اور نرم دل کی مالک۔ نوین نے سچے دل سے عبیرہ کے رویے کو سراہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو نظر انداز کیا تھا، کیا آپ کو برا نہیں لگا؟ آپ مجھے تو یاد بھی نہیں، عبیرہ مسکراتے ہوئے بولی۔ نوین بھی مسکرا دیا۔ مطلب آپ دل میں باتیں رکھنے والوں میں سے نہیں ہیں، بس بہت صاف دل ہے آپ کا، دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا جانتی ہیں آپ۔ نوین کی بات پر عبیرہ مسکراتی، نہیں ڈاکٹر نوین، میں اتنی بھی اچھی نہیں ہوں جتنا آپ بیان کر رہے ہیں۔ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں میں، جو اچھا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھے سے بھی اچھا سلوک کرنا جانتی ہوں، اور جو برا کرے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا اور اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا، یہی میری زندگی ہے۔ ایسے ہی زندگی جینا چاہتی ہوں میں، ہر کسی کے دل میں اچھائی بن کر زندہ رہنا چاہتی ہوں میں۔ عبیر گلدستہ پھر سے بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ باتیں کرتے ہوئے وہ گلدستہ نوین کی طرف بڑھایا۔ نوین نے سر نفی میں ہلا دیا۔ میں یہ نہیں لکھ سکتا، پتہ نہیں کس نے بھیجا ہے، پہلے وہ لاکٹ اور اب یہ پھول، تنگ کر رکھا ہے مجھے۔ اب یہ سمجھ لیں میں بھیجا ہے آپ کو، میری طرف سے قبول کر لیں یہ تحفہ۔ واٹ؟ نوین کرسی سے اٹھ کر عبیر کی طرف بڑھا۔ عبیر مسکرا دی۔ ڈاکٹر نوین، جس نے بھی یہ آپ کو بھیجا ہے مجھے یقین ہے بہت محبت سے بھیجا ہوگا۔ سرخ پھولوں محبت کی نشانی ہوتی ہے، یہ ان کو ہی بھیجے جاتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، یا پھر یوں کہہ لیں جن کے ہم فکر کرتے ہیں اور انہیں کھونا نہیں چاہتے، انہیں کو بھیجتے ہیں۔ آپ نے بہت بے دردی سے ان پھولوں کو زمین پر پھینک دیا۔ اگر آپ ان پھولوں کو لاکٹ بھیجنے والے کی چاہت مسدود کر لیتے تو کبھی ایسا نہ کرتے۔ کسی کا دیا ہوا تحفہ ایسے رد نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ نے یہ زمین پر پھینکے اور میں نے اٹھا لیے تو اب یہ میرے ہوئے، تو اب میں اپنی طرف سے آپ کو دے رہی ہوں، یہ تحفہ ہے تو آپ قبول کر لیں۔ نوین نے مسکراتے ہوئے عبیر کے ہاتھ سے پھول تھام لیے۔ یہ لڑکی اس کی سمجھ سے باہر تھی، اتنی کم عمری میں اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر لیتی ہے؟ ہر سوال کا جواب پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے اس کے پاس۔ تھینکس۔ نوین کے تھینکس کہنے پر عبیر مسکرا دی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر نوین، دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کسی کا دل مت توڑیں۔ اگر کوئی آپ سے چھپ کر محبت کرتے ہیں تو اس کی قدر کریں، اور جو کوئی بھی ایک ہے دینا سمجھ ضرور آئے گی۔ آپ محبت کا جواب محبت سے دینا سیکھ لیں اور اپنے غصے پر قابو پانا ہے۔ کبھی کبھی ہم غصے میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے اور اپنا کوئی قیمتی چیز کھو دیتے ہیں۔ صرف چیز ہی نہیں، اپنی انا کی خاطر دوسروں کے احساسات بھی کچل ڈالتے ہیں۔ میں چلتی ہوں، ڈاکٹر طلحہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ عبیر اسے حیران کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ نوین پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ عبیر کے جاتے ہی نوین گارڈ کی چابیاں اٹھاتے ہوئے تیزی سے باہر کی طرف بڑھا، گھر پہنچی اور باسکٹ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی میں لاکٹ پھینکا تھا، باسکٹ خالی تھی اور نوین کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ ایک بہت ہی قیمتی تحفہ کھو دیا تھا اس نے اپنی لاپرواہی کی وجہ سے ہے۔ صحیح کہہ رہی تھی عبیر، وہ جو کوئی بھی ہے ایک نئی دن میرے سامنے ضرور آئے گی، بس مجھے اس کے احساسات کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ نوین اداسی سا چہرہ لیے جیسے ہی واپس پلٹا، لاکٹ کسی نے اس کے سامنے لہرایا۔ وہ لاکٹ لائبہ کے ہاتھ میں تھا۔ نوین آنکھیں سکوڑتے ہوئے لائبہ کو گھورنے لگا۔ چٹ سے اس کے ہاتھ سے لاکٹ کھینچ لیا۔ لائبہ مسکرا دی۔ واہ بھائی،
बड़ी जल्दी एहसास हो गया आपको अपनी गलती आई। अब तो ये बात कंफर्म होगी किसी ने ये लाकट भेजा है। इसे भाई बनाने की तैयारी, भाभी बनाने की तैयारी कर लूँ मैं। शट अप, फजूल बातें मत किया करो लाइबा। अच्छा ये फजूल बातें हैं और ये लाकट भी फजूल। तभी तो हॉस्पिटल जाते ही आप अचानक वापस आ गए और आते ही बास्केट में ये लाकट ढूंढने लगे। ऐसे कुछ भी नहीं है लाइबा, मैं बस इसलिए ढूंढ रहा था ताकि वापस लौटा सकूं। नवीन तेजी से वहां से निकल गया। हाँ हाँ सब जानती हूँ भाई। लाइबा मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। नवीन ने मुस्कुराते हुए लाकट गले में डाल लिया और हॉस्पिटल के निकल गया। हर हो कौन तुम, सामने क्यों नहीं आती? इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम मेरे आस पास हो। एक दिन ढूंढ ही लूंगा मैं तुम्हें, देखता हूँ कब तक चलता है ये हाइड एंड द सीकर। नवीन जैसे ही अपने डिपार्टमेंट में दाखिल हुआ, डॉक्टर अफशाप सामने रुकी। डॉक्टर नवीन कहाँ थे आप? आप जानते हैं आप ड्यूटी टाइमिंग में हॉस्पिटल से बाहर थे और अपना बिना बताए हितलाए। क्या मैं पूछ सकती हूँ आखिर ऐसे कौन सी इमरजेंसी थी जो आपको ड्यूटी छोड़कर जाना पड़ा? आई एम सॉरी सर, मैं ऐसा कहना नहीं चाहती मगर मैडम ने कहा है कि आप पर सख्ती की जाए, इसलिए जो पूछा है। डॉक्टर अफशाप मुस्कुराते हुए बोली। नवीन में मुस्कुरा दिया। सॉरी डॉक्टर शाह, आप मैम से कह दें आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। श्योर सर। आशा मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। नवीन अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नवीन की नजर गुलाब फूलों पर पड़ी तो मुस्कुरा दी। अब जब तुम आओगी तो मेरी नजरों से बच नहीं पाओगी। बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। नवीन ने अपनी पॉकेट से एक पेन निकाल कर सामने अलमारी के शीशे में पड़ी रजदारी से सेट किया। ये कोई आम पेन नहीं था, इस पेन में एक खुफिया कैमरा नस्ब था। नवीन ने उस कैमरे की लोकेशन अपने फोन पर सेट की और कमरे से बाहर निकल गई। एक माह तक यूं ही चलता रहा मगर दोबारा कभी कोई फूल या कोई गिफ्ट वसूल नहीं हुआ जिसे नवीन भेजने वाले को देख सके। एक माह तक ये बात नवीन की कुछ पुरानी सी हो गई। वो अपनी ड्यूटी में मसरूफ सा हो गया। सारा स्टाफ के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी नवीन की। एक दिन नवीन रात का खाना खाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो इस कमरे में एक अजीब सी खुशबू महसूस थी। नवीन चाह कभी इस महक को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जैसे ही इसकी नजर टेबल पर पड़ी तो हैरत का झटका लगा। फिर से वही फूल और साथ एक पेपर पड़ा था। ओह, फिर से नवीन मुस्कुराते हुए टेबल की तरफ बढ़ा। अच्छी कोशिश थी डॉक्टर नवीन शाह, आपको लगा कमरे में कैमरा लगाकर आप मुझ तक पहुंच जाएंगे। अगर आपने ऐसा समझा था तो ये आपकी गलतफहमी थी। इतना आसान नहीं मुझ तक पहुंचना। अगर मुझे ढूंढना चाहते हैं तो अपने दिल में ढूंढें। शायद आपके दिल के किसी कोने में मेरा अक्स मौजूद हो। कुछ भूली बसरी यादें, कुछ माजी के लम्हे। मत ढूंढे मुझे गुलशन में, मैं बसी हूँ तेरे दिल में। बिखरी सी कोई ख्वाहिश, धुंधली सी कोई याद। मत ढूंढे मुझे गुलशन में, मैं बसी हूँ तेरे दिल में। मेरे दिल में। नवीन ने खुद से ही सवाल काटा। इम्पॉसिबल। नवीन पेपर फोल्ड करते हुए पेपर के माहिर बेड की तरफ बढ़ गया। तुम मरोगी मुझे से किसी दिन। जिस दिन भाई को पता चल गया ना, वो दिन हम दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। लाइबा सरगोशी के अंदाज में बोल रही थी। आइंदा सोच समझ कर जिहाद ना, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वैसे कभी कभी मेरा दिल करता है कि बता दूं भाई को, मगर फिर इनके चेहरे की हैरानगी देखने की सोचती हूँ तो रुक जाती हूँ। चेहरे देखने वाला होते हैं भाई का। लाइबा दबी दबी हंसी में बोली। नवीन ने खिड़की से पर्दा हटाया तो गेट के पास लाइबा के साथ एक लड़की को खड़े देखा जो सफेद चादर में अपना चेहरा छुपाए खड़ी थी। लाइबा हंस के बातें कर रही थी जबकि वो लड़की चुपचाप खड़ी थी। नवीन हैरत से इन दोनों को देखते हुए बाहर की तरफ बढ़ा। लाइबा, नवीन की आवाज पर लाइबा चुनकर पलटी और वो लड़की तेजी से गेट खोलकर बाहर निकल गई। कौन थी ये लड़की? कौन सी लड़की भाई? लाइबा घबराते हुए बोले। जो अभी तुम्हारे साथ खड़ी थी। अच्छा, वो मेरी दोस्त है भाई। इतनी रात को मिलने आई हो तुमसे? कोई इमरजेंसी थी क्या भाई? वो मेरा लैपटॉप वापस करने आई थी। साथ वाले घर में रहती है तो ठीक है, मगर इस वक्त आना जरूरी तो नहीं था। हालात बहुत हराम है भाई। आइंदा जो भी काम हो सुबह का इंतजार करना। ओके भाई। राइबा तेजी से अपनी कमरे की तरफ बढ़ गई। नवीन भी अपने कमरे में आ गया। रात को कोई लड़की अकेली घर से बाहर कैसे निकल सकती है? हैरानगी वाली बात है। कोई रोकने वाला ही नहीं है। और लाइबा ने इतनी रात को गेट क्यों खोला? पता नहीं ये गार्ड है कि अगर कोई हादसा हो जाता फिर इस पागल लड़की की सुबह क्लास लूंगा। डेढ़ से एक तो इस लड़की ने पागल कर रखे हैं मुझे। सुबह और शाम एक माह तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और मुझे लगा शायद ये कैसा खत्म हो गया, मगर नहीं, इसने हार नहीं मानी। ऑफिस में कमरा लगवाया तो घर तक पहुंच गई। परेशान कर रखे। जितना भी जेन पर जोर डाल लो समझ नहीं आता। हर ये कौन है? एक मिनट, मैंने अपने ऑफिस में कैमरा फिट किया, इसे कैसे पता चला ये मेरा कमरा है? या ये भी पता है इसे और आसानी से घर में भी आ सकती है? मतलब इसका ताल्लुक हॉस्पिटल और घर के दोनों से है। या फिर यूं कह सकते हैं कि हमारे घर और हॉस्पिटल में कोई तो ऐसा है जो इसकी मदद कर रहा है या फिर कर रही है।
लाइबा इसकी वो दोस्त जो अभी अभी यहाँ से गई थी, इसका ने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा था, और मुझे देखते ही वो तेजी से गेट से बाहर निकल गई। हो न हो मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त, ये लाइबा की दोस्त है, क्योंकि अभी मेरे कमरे में ये गुलदस्ता और पेपर, और फिर अचानक लाइबा के खुफिया तरीके से रात के इस वक्त इस लड़की से बातें करना, सारी उलझने अब सुलझने वाली थी। लाइबा ही बता सकती है मुझे इसके बारे में। हाँ यही सही है, मगर इस वक्त नहीं, सुबह बात करूंगा। अभी मुझे सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना है। सोचे में डूबा हुआ सोने के लिए लेट गया। सुबह तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आया तो सब मौजूद थे सिवाय लाइबा के। जब सब नाश्ता कर चुके थे, लाइबा अजलत में वहां पहुंची। डैड प्लीज मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दे, बहुत लेट हो गई हूँ मैं। मुझे बेटा, मैं तो आज ऑफिस नहीं जा रहा, तबीयत कुछ नासाज है, आप बाई के साथ चली जाओ। जी डैड, मैं छोड़ दूंगा लाइबा को, आप आराम करें। जी डैड आप आराम करें, मैं चली जाती हूँ बाई के साथ। नाश्ता तो कर लेती लाइबा, मैं से शाह थोड़ी गुस्से से बोली। नहीं मामा, मैं नाश्ता वहीं कर लूंगी, आज मेरी फ्रेंड नाश्ता करवा ही रही है, हम सबको चले। नवीन नशे से हाथ साफ करते हुए वो उठ खड़ा हुआ। जी भाई, लाइबा मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। खुदा हाफिज, नवीन मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। आज मौसम कितना अच्छा है नवाई, आहर कर लाइबा बोर्ड ही पड़ी। नवीन ने इस वक्त गाड़ी साइड पर रोक दी। काश मैं भी ऐसा कह सकता। एक एक गिलास गुस्से से बोल कर गया। क्या हुआ भाई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और अगर तुम चाहो तो आगे भी ठीक रह सकती है। नवीन का दिल चाहे कि अभी अपने गुस्से की वजह बयान कर दे लाइबा के सामने, लेकिन नहीं, इसने अपना गुस्सा काबू किया। ये सोचते हुए कि अगर अभी मैंने लाइबा से कुछ पूछ लिया तो ये साफ इनकार कर देगी और मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, तो बेहतर है कि मैं थोड़ा इंतजार कर लूँ और इनकी अगली चाल का इंतजार करूँ, ताकि इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ सकूँ। हम यही सही रहेगा। और दिल ही दिल में सोच कर मुस्कुरा दिया। गाड़ी स्टार्ट करते हुए लाइबा की तरफ मुतवज्जा। लाइबा, मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारी वजह से। ना तो तुम खाना ठीक से खाती हो और ना ही पढ़ाई में दिल लगता है तुम्हारा। पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा। लाइबा ने सूखा सांस लिया। भाई की बात पर वो समझ रही थी कि शायद नवीन को सब पता चल चुका है और अब वह इससे जवाब तलब करेंगे। लाइबा के चेहरे की घबराहट नवीन देख चुका था। इसका शक अब यकीन में बदल चुका था। क्या भैया, आप बिना फजूल में परेशान होते रहते हैं? आप फिक्र मत करें, मेरा मुस्तकबिल संवर चुका है। मुझे कोई फिक्र नहीं। फिक्र तो इनको होनी चाहिए जिसके साथ मेरा मुस्तकबिल जड़ चुका है। पता नहीं क्या बनेगा इस बेचारे का। वो दबी दबी सी हंसी में बोली। बुरी बात लाइबा, नवीन ने से टोका। राहिम तो बहुत भोला है और तुम बहुत चालाक हो। कभी कभी तो मुझे बहुत तरस आता है इस बेचारे पर। तुम्हारी बातों में आ जाते हैं ऐसे जैसे गुलाम हो। बहुत बुरी बात है लाइबा, खुद को चेंज करो। वाह भाई, क्या बात है आपकी। आप दुनिया के पहले भाई हैं जो बिनोई की तारीफ और बहन की बुराई करते हैं। इतने भी बोले नहीं है वो। हजारों बार कॉल करो तो एक मैसेज आता है इनका। वह भी सॉरी, आई एम बिजी राइट नाउ। आप कहते हैं मेरी सारी बातें मानते हैं। हाँ, तो वो एक बिजनेसमैन है, हजारों काम होते हैं इसे। तुम हर वक्त कॉल्स करके परेशान करे देती हो इसे, और जैसे ही वो फ्री होते हैं ऑफिस से तुम्हारी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। बोतल से निकलने जिन की तरह। बोतल से निकला जिन। लाइबा सोच में पड़ेगी। उफ भाई, आप ही ना। बोतल से निकला जिन नहीं, चिराग से निकला जिन। यस वट एवर, नवीन कंधे उछलाते हुए बोला। मेरा मकसद था तुम्हें समझाना, तंग मत किया करो इसे। अपनी असाइनमेंट खुद बनाया करो, वो पहले ही थका हारा आता है ऑफिस से और तुम इसे अपने कामों में लगा देती हो। थोड़ा ख्याल किया करो इसका। ये मेरा हक है भाई, इनसे काम निकलवाना, और इनका फर्ज है कि मेरी हर कॉल पर लबैक बोलना। बिल्कुल पागल हो तुम। नवीन ने यूनिवर्सिटी का गेट के पास गाड़ी रोक दी। आप नहीं समझेंगे भाई, दरअसल आपकी जिंदगी में अभी कोई है नहीं जो आपके निखर नहरे उठाए और आप इसके नहरे उठाएं। जब कोई आ जाएगा ना तब समझेंगे आप, अभी आपको समझाना फजूल है। नवीन के चेहरे के वसीले तेवर देखते ही लाइबा तेजी से अपने बैग उठाए तो गाड़ी से बाहर निकल गई। फिर वापस पलटी, दरवाजा पर बाजू जमाए गाड़ी के अंदर झांकते हुए मुस्कुरा दी। भाई कोई है क्या? वो लाकट वाली ईमानी है से बोलती वो गेट की तरफ बढ़ गई। नवीन एक गहरा सांस लेते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करना। जब लाइबा यूनिवर्सिटी का गेट पार कर गई तो इसने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। हॉस्पिटल पहुंचकर दादू से मिलते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो बेसाहत स्टाफ रूम से आने वाली आवाज पर कदम रोक दिए। डॉक्टर अफशा, ये सब ठीक नहीं कर रही है आप। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर पहुंच गई और सब संभाल लिया। अगर इनको पता चल गया तो हम सब के लिए अच्छा नहीं होगा। नवीन दरवाजा नॉक करते हुए अंदर की तरफ बढ़ा। एवरीथिंग आई इज फाइन। नवीन को सामने देखकर दोनों के चेहरे पर परेशानी छा गई। जी, एक मरीज की हालत काफ़ी ख़राब थी तो डॉक्टर अफशा ने इनके घर वालों से ये कहा कि आप किसी और हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि आज वो दो डॉक्टर्स छुट्टी पर हैं, तो इसलिए इन्होंने ऐसे किया। वो तो मैं वक्त पर पहुंच गई और मरीजों को एडमिट
करने को बोला। तो मैं इनसे यही कह रही थी कि अगर मैम को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। इट्स ओके अरीब, डॉक्टर अफशान, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना दादों के गुस्से से तो आप वाकिफ ही हैं। जी सर, आइंदा ध्यान रखूंगी मैं, डॉक्टर अफशान शर्मिंदी से बोली। नवीन अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वीर अपना सर थामते हुए कुर्सी पर बैठ गई। आए तो हम बच गए, लेकिन डॉक्टर अफशान प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आइंदा ऐसे नहीं होना चाहिए। उफ अभी तुम कुछ ज्यादा ही डरती हो डॉक्टर नवीन से। नहीं, मैं इससे डरती नहीं हूँ, मेरी नौकरी की फिक्र है मुझे। आप तो जानती हैं बाबा बीमार हैं, इनका इलाज चल रहा है, मुझे इनके इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं। भाई अभी छोटा है, इसकी और शादी के पढ़ाई का खर्चा भी मुझे उठाना होता है। अम्मा पहले ही अब्बा की वजह से परेशान है, ऐसे में अगर मेरी नौकरी चली गई तो कौन संभालेगा इन सबको। इन सब की उम्मीदें मुझसे जुड़ी हैं और मुझे किसी भी सूरत इनकी उम्मीदें तोड़ना नहीं चाहिए। आप चले मरीजों को देख लें। वो दोनों इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ गई। नवीन अपने कमरे में गया, पानी के गिलास में और रिलैक्स होते हुए कमरे से बाहर निकल गया। अपने रूम से बाहर निकला, डॉक्टर अबीरा को आंसू बहाते सामने से तेजी से गुजरते देखा। डॉक्टर अबीरा, नवीन ने इसे पुकारा मगर वो शायद जल्दी में इसे पुकार ना सुन सकी। सर, वो अपने घर जा रही है, इनके बाबा की हालत बहुत ज्यादा खराब है, घर से कॉल आई है इनको। डॉक्टर अफशान ने नवीन को वीर को पुकारते हुए देख लिया था, तभी ही वहां से चली आई। और सो सेड, उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अबीरा, डॉक्टर अबीर बहुत परेशान लग रही थी। नहीं सर, अब कुछ नहीं हो सकता, इनको ब्लड कैंसर आखिरी स्टेज है, इनके इलाज के लिए ही तो वो दिन रात एक किए हुई थी। वही घर की वाहिद कफील है, दो छोटे बहन भाई हैं, इनके पढ़ाई के खर्चा और घर के खर्चात सब की जिम्मेदारी इस पर है। लेकिन कभी मैंने इसके मुंह से शिकवा नहीं सुना, अपनी फैमिली पर जान मारती है। लेकिन इन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि इनकी जिंदगी इतनी प्रॉब्लम से, वो तो हर वक्त बहुत खुश रहती हैं। नवीन को हैरत किए हुई डॉक्टर अफशान की बात सुनकर, जी सर, वो ऐसी है, जिंदा दिल, दूसरों के सामने अपने दुख यहाँ नहीं करती, अपनी मुश्किलात से खुद ही लड़ना जानती है। चाहे खैर दुआ करें इनके बाबा ठीक हो जाएं। नवीन बोलते हुए मसरूफ से आगे बढ़ गया। अमीन, डॉक्टर अफशान भी वार्ड की तरफ बढ़ गई। शाम को जब नवीन घर जाने लगा तो डॉक्टर अफशान को स्टाफ रूम में आंसू बहाते देखा। बाकी स्टाफ भी यही मुझे, तो क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना आप सब लोग एक साथ यहाँ। नवीन दरवाजा नॉक करते हुए अंदर दाखिल हुआ। सर, वो डॉक्टर अबीरा के बाबा की डेथ हो गई है, वो भी रास्ते में ही थी जब घर से कार आई, अपने बाबा को आखिरी बार देख भी नहीं सकी और इनके पहुंचने से पहले ही रिश्तेदारों ने इनके बाबा की तफ्तीन कर दी। अभी मैंने डॉक्टर अबीरा को कॉल की तो वो बहुत रो रही थी, वो तो बात भी नहीं कर सकी। इनकी छोटी बहन ने बात करके बताया मुझे। डॉक्टर अफशान आंसू पूछते हुए बोले, ओह सो सैड, मैं माय लव कीप हिज सोल्स इन रील्स, आमीन। नवीन अफसरदा होते हुए बोला, कैसे रिश्तेदार हैं जो बेटी को बाप की आखिरी दीदार नहीं करने दिया, ऐसे लोगों को तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नवीन गुस्से से दांत पिसते हुए, खैर आप लोग पेशेंट्स को देखिए, अगर मैम आ गई हैं तो सबको एक साथ यहाँ देखकर गुस्सा होंगी। नवीन बोलते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मगर अफशान की बात पर इसके बाहर की तरफ बढ़ते कदमों के साथ मैम डॉक्टर दल्हा के साथ डॉक्टर अबीर के घर गई हैं। वो कह रही थी कि सुबह वापस आ जाएंगी, इन्होंने मुझे आपको इन्फॉर्म करने का कहा था, सबसे पहले इन्हें ही इत्तला मिली डॉक्टर अबीर के घर। वाट, नवीन तेजी से पलटा। दादो कैसे जा सकती हैं, मेरा मतलब इनकी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती। कहाँ है डॉक्टर बीट, मुझे एड्रेस चाहिए, मैं अभी जा रहा हूँ। हाँ जी सर, मैं अभी देती हूँ आपको। डॉक्टर अफशान ने बेग की तरफ बढ़ी। डॉक्टर डायरी से अबीर के घर का एड्रेस नोट कर नवीन की तरफ बढ़ाया। आप लोग अपनी ड्यूटी संभालें, किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। स्टाफ को बधाई दी। सर आप फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूंगी, आप बेफिक्र होकर जाइए। ओके। नवीन तेजी से पार्किंग की तरफ बढ़ा। नवीन जाते ही डॉक्टर अफशान ने अपना फोन उठाया और मैम का नंबर डायल किया। ये सब शाम और बेजारी से बोली, मैम वो नवीन सर भी वहाँ आ रहे हैं, जब इनको पता चला आपके बारे में तो वो परेशान होंगे और आपको लेने आ रहे हैं। वाट, ये लड़का बिना कोई जरूरत नहीं है इसे यहाँ आने की, तुम मना करो से, बल्कि रहने तो मैं खुद कॉल करती हूँ इसे। वो कॉल डिस्कट करते हुए नवीन का नंबर डायल करने लगी। दादो कॉलिंग देखकर नवीन ने कॉल पर हेलो टू डिवाइस सेट की और कॉल रिसीव की। नॉट फेयर दादो, आप कैसे बिना बताते इतनी दूर जा सकती हैं, आप मुझसे कहती थी मैं आपको ले जाता, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, आप तो खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र रहती है। आ रहा हूँ मैं आपके पास। डॉक्टर अफशान से ड्रेस ले लिया है मैंने और इनकी एक भी बात सुने बगैर बोलता चला गया।